स्टार्ट हो गया पवन जी? हाँ जी, हाँ जी। $69, $68 आ चुके हैं बाकी लोग भी। ये हमारी पूरी कमेटी है। ये इस बार प्रधान है, मतलब फिलहाल। हाँ, ये सेक्रेटरी है, ये वाइस चेयरमैन है, ये लास्ट ईयर का चेयरमैन था, मैं ट्रेजरर हूँ। Shall we start? Start करें पवन जी? जी मैडम, जी मैडम, ठीक है जी। पवन जी, shall we start? Good morning, friends. I, CA Pawan Mittal, Secretary, welcome you all on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI. Respected senior members of the branch and my young friends, today we have with us the tax guru and the legend personality CA Dr. Giri Sahuja ji as a guest speaker. I welcome you, sir, on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI. Topic of the today's webinar, as you all know, Union Budget 2021. Before inviting to CA Dr. Giri Sahuja ji guest speaker, I would like to invite CA Asha Jain ji, chairperson of the branch, for her welcome address. Hand over to Thank you, Pavan ji. A very good morning to our mentor, Guru, CA Dr. Girish Ahuja ji, all the respected senior members and my dear friends who have joined us for today's webinar on Budget 2021. I extend a warm welcome to the tax guru and also salute his energy level. You all will be surprised to know that Girish sir will be taking nearly 70 webinars, lectures in 9 days since 1st Feb. Just imagine he will have to speak more than 14 hours a day. He starts at 8 a.m. and continues till 10 p.m. I can also assure you that we will find him with the same level of energy even in the last webinar. Hats off to you, Giriji. Thank you. I am lucky as I got the chance to hear you in ICI webinar, then on second in NIRC webinar, and today again in our own branch webinar. In fact, I get very positive energy whenever I hear you, and I think the same will be the case for almost all the members. So without taking much time, I would request our tax guru, जिनको सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं, to start his session. Welcome you, Girish sir. Good morning Please, to over all. to you. Good morning, morning, to sir. everyone. Chairperson of the Good morning, sir. Chairperson of the Hisar Thank you, sir. Asha Jain ji, Secretary of the branch Thank Pawan you. Mittal ji, Bharat Jain ji, Adish Jain ji, Vishal Bhardwaj ji, ladies and gentlemen. एक भरत जैन भी हैं, वो दोबारा है. चलिए, ladies and gentlemen. देखिए ये बजट बड़ा टेक्निकल है. आपको लगेगा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ been so many things which have been clarified.
which have been a benefit given to you, and somewhere the benefit have been taken away from you also. Let me tell you, there is absolutely no change in the rates of income tax. Everybody was thinking of COVID tax or something or cess or something. There is nothing in it. लेकिन बात को सुन लेना, एक एक चीज समझने वाली है. अगर आप चाहें तो बीच में भी मैं ले लूंगा क्वेरी, आप साथ में रोक के भी ले लेंगे बाद में, क्योंकि मेरा आगे भी लेक्चर है आपके बाद एकदम. तो लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 11 में. सेक्शन 2 क्लॉज 11 ब्लॉक ऑफ एसेट की डेफिनेशन देता है. आपको मालूम है यू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट. क्या कहता है डेफिनेशन, जरा सुनिए. ब्लॉक ऑफ एसेट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट falling in a class of asset, falling part of a class of asset comprising of tangible asset, buildings, machinery, furniture and plant, and intangible asset being technical know-how, patents, copyrights, trademark, licenses, franchises, or any other commercial or business site of similar nature. आपने इंटेलिजिबल एसेट में देखा, उसका नाम क्या दिया गया इंटेंजिबल एसेट्स में? नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर. कहीं आपको गुडविल नजर आया इसमें? गुडविल नहीं है. लेकिन स्विम्प सिक्योरिटीज लिमिटेड की एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी जिसमें कहा था कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट इज ए डेप्रिशिएबल एसेट. आपको इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा. और उन्होंने कह दिया ये इंटेंजिबल एसेट में बिजनेस और कमर्शियल राइट जब लिखा है उसमें वो आ जाती है. इतने सालों से चल रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या आया. इन्होंने कह दिया गुडविल तो होती जो है वो तो इंटेंजिबल एसेट तो है लेकिन फिक्टिशियस एसेट है. आज वो गुडविल है, कल बैडविल भी हो सकती है. तो गुडविल के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे. तो इन्होंने कैसे किया? इंटेंजिबल एसेट की जो डेफिनेशन लिखी थी उसको दोबारा बोल रहा हूं और अमेंडमेंट बोल रहा हूं. इंटेंजिबल एसेट मींस बीइंग टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट. अब क्या डाला है? नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन. और उसके बाद वही है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम डेप्रिसिएशन. मतलब वो इंटेंजिबल एसेट से गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन को बाहर कर दिया है. मीनिंग देयर बाय इसी तरह सेक्शन 32(1) में जहां लिखा है डेप्रिसिएशन किसके ऊपर मिलती है, वहां लिखा है डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन टेंजिबल, इंटेंजिबल. इंटेंजिबल में वही डेफिनेशन है, वहां पर भी लिख दिया नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और ए प्रोफेशन. मतलब 32(1) में क्लियर कर दिया कि आप डेप्रिसिएशन नहीं देंगे. अब लेते रहे, अब नहीं देंगे. सर कितनी मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, टेक ओवर होते हैं, स्लम सेल होती है, एसेट से ज्यादा पैसा दिया जाता है, मालूम है ना. और बाकी डिफरेंस कहां डालते हैं? गुडविल में डालते हैं. हमेशा गुडविल करोड़ों रुपए की गुडविल होती है. अदरवाइज एसेट की कीमत क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी तो एक अमाउंट 1 करोड़ होगा, लेकिन कई बार आप 3 करोड़ देते हैं. तो क्या है बाकी? कहां डालोगे? गुडविल डालोगे. लेकिन उन्होंने कह दिया अब इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी. तो क्या हो गया? फिक्टिशियस एसेट पड़ी रहेगी किताबों में, खर्चा मिलेगा ही नहीं. पहले तो मिल जाता था ना 25% इंटेंजिबल एसेट में, और जब तक इसको बेचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना. तो आपके तो हो गया ना, फिक्टिशियस एसेट खड़ी रह गई और इतने करोड़ों रुपए की गुडविल ली, अब खत्म. और इसी तरह एक्सप्रेशन 3 में जहां इंटेंजिबल एसेट को बताया था वहां भी ले दिया नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन. तो आगे से गुडविल नहीं मिलेगी, चाहे वो बिजनेस की हो या प्रोफेशन. देखिए दो तरह का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक गुडविल परचेज करी. सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो अलाउड किया हुआ. सेक्शन 5 में लिखा है इस कॉस्ट इज निल. लेकिन इसकी क्या कॉस्ट होती थी? परचेज, जो फिर प्राइस पे की थी वो होती थी, लेकिन उसको डेप्रिशिएबल एसेट बनाकर हम उसकी डेप्रिसिएशन ले लेते. अब कह दिया नहीं,
अब जब भी गुडविल बेचोगे तब कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन कैसे लगेगा? सेल प्राइस माइनस गुडविल की जो है। अगर बेचोगे नहीं तो पड़ा रहेगा। 99% में गुडविल बेची थोड़ी जाती है, वो तो एक बार ही आपने खरीद ली कोई बिजनेस और उसकी गुडविल ले ली और वो गुडविल पड़ी है, आपका तो फिक्टिशियस एसेट हो गया। सेक्शन 50 में भी लिख दिया, जब वो आपको अब जो गुडविल पे नहीं लेना उसका ब्लॉक से अलग निकाल देंगे, अलग, वो ब्लॉक से अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लिख दिया कि क्या कॉस्ट होगी इस गुडविल की। अगर पुरानी है तो परचेज प्राइस माइनस द माइनस द डेप्रिसिएशन अलाउड टिल डेट, परचेज माइनस द डेप्रिसिएशन अलाउड टिल डेट। अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो है ही नहीं, उसमें तो बात ही कोई नहीं। अगर नहीं खरीदोगे तो कॉस्ट मालूम है आपको, लेकिन वो कॉस्ट का आपको कोई डिडक्शन, कोई एक्सपेंस नहीं मिलेगा। हाँ, कभी बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। 55 में प्राइस भी बता दी, लेकिन इंतजार कीजिए, एक और गड़बड़ कर दी है, सेक्शन 55 में चेंज कर दिया है। पहले लिखा होता सेल्फ जनरेटेड एसेट जो होती हैं, गुडविल ऑफ बिजनेस, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन नहीं लिखा था। They had not written goodwill of a profession at that particular point of time. अब क्या है, वह गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन दोनों डाल दिया। अभी तक तो क्या था, सपोज मेरी गुडविल है, मेरे नाम की वो चल रही है फर्म, मैं फर्म आपको भेज देता हूँ, तो गुडविल तो है ना उसमें, तो आप मुझे गुडविल दे देते हो 1 करोड़ रुपए, ठीक, यही चलेगी मेरे नाम से, आप पार्टनर बन जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको गुडविल दे, तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन वहां लिखा ही नहीं गया था। और आपको क्या मिलता था, गुडविल परचेज करी और आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता था। अब तो दोनों तरफ से मार पड़ गई। मैं आपको गुडविल बेचूंगा क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है, मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, और जब आप खरीदेंगे उसका खर्चा मिलना ही नहीं है जब तक आप उसको दोबारा बेचकर कैपिटल गेन नहीं कमाए। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? कोई टाइम ना हो तो पूछ लीजिए। तो मैं अब आगे जा रहा हूं। अब एक और नई चीज निकाल लीजिए, इनकम टैक्स दोस्त बहुत है। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तक आप दें, तो जब पैसा वापस आता है तो 10(10)(d) में पूरा का पूरा माफ है ना। सेक्शन 10 क्लॉज 10(d) में पेमेंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आती है वो पूरी माफ है 10(10)(d). वो कीमैन इंश्योरेंस छोड़ दो, कीमैन इंश्योरेंस टैक्सेबल है, या जिसपे 10% से ज्यादा किया वो टैक्सेबल है, अदरवाइज तो माफ है ना। अब एक इंश्योरेंस कंपनियों ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है लाइफ इंश्योरेंस का, उसका नाम रखा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान नहीं कह रहा, वो अलग चीज है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये नया प्रोडक्ट आया है जिसका नाम रखा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके 2 कंपोनेंट हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट पार्ट है और कुछ कंपोनेंट इंश्योरेंस का पार्ट है। इंश्योरेंस भी हो जाएगी और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो आपको दे देंगे। समझ में आया? 2 कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, इंश्योरेंस कंपोनेंट। बहुत अच्छी बात है, नई चीज आई है, लेकिन अब बेड़ा गर्क कर दिया। सेक्शन 10(10)(d) जहां लिखा है कि इंश्योरेंस से पैसा वापस आए तो माफ है, वहां पर 4 प्रोविजो डाल, प्रोविजो 4th, प्रोविजो 5th, प्रोविजो 6th, प्रोविजो 7th। पहले थक गए हैं प्रोविजो पढ़ के, और 4 प्रोविजो पढ़ लो। प्रोविजो 4th में क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनना। The provisions of section 10(10)(d) shall not apply। 10(10)(d) का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि आपको एग्जेम्पशन मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है, वो नहीं मिलेगी। shall not apply if you have taken a unit linked insurance policy on or after 1 फरवरी 2021 के बाद जो पॉलिसी लेंगे उसमें प्रोविजन 10(10)(d) नहीं लगेगा। if any of the previous year you have contributed a premium exceeding 2,50,000, मतलब अगर 2,50,000 से सारा साल देते रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी साल 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट करी प्रीमियम की, तो ये पैसा जब वापस आएगा वो माफ होगा ही नहीं। ये क्लियर हो रहा है?
आपने पॉलिसी ली 1.5 लाख, अगर एक भी साल 2.5 लाख दे दिया बिफोर मैच्योरिटी, तो आपको हम जो पेमेंट आएगी 1010D में वो माफ नहीं करेंगे। अब हमारे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत होशियार है, वो कहते हैं हम 2 ले लेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 1.5 लाख वहां दे देंगे, 1.5 लाख यहाँ दे देंगे, तो 2.5 लाख से कम हो जाएगा। तो उन्होंने प्रोविजन 5th में डाल दिया कि भैया अगर 2 पॉलिसी लोगे या 3 लोगे तो एग्रीगेट अमाउंट अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा एग्रीगेट, तो भी 1010D नहीं लगेगा। ये भी समझ में आ गया सर? 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम हुआ, अब प्रोविजन 6th डाला। हाँ, भगवान ना करे आपकी किसी की डेथ हो जाए, तो आपकी क्यों कहूं, किसी की डेथ हो जाए, तो फिर जो लीगल ईयर को पैसा मिलेगा वो माफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो माफ होगा। और प्रोविजन 7 में लिख दिया कि कोई डिफिकल्टी है तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करेगी और वो गाइडलाइंस आपके ऊपर बाइंडिंग होगी। समझ में आ गया पहला? अब आप बताइए, आप हर साल 2-2 लाख ले रहे हैं, एक साल 3 लाख दे दिया, तो क्या होगा? जब पैसा आएगा टैक्स लगना है? कहता ना 1010D लगेगा ही, 1010D नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होगा? कहता रुको, टैक्सेबल होगा। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, कैसे टैक्सेबल होगा? 1010D नहीं लगेगा। लेकिन क्या है, ये जो पॉलिसी है ना आपकी, इसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट। अब जब कैपिटल एसेट मानेंगे और पैसा आएगा तो कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल एसेट मानेंगे। वो कहता है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में तो लिखा ही है, कैपिटल एग्रीमेंट में लिखा है, कैपिटल एसेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। और क्लॉज बी में लिखा है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और आज तक हमने कभी पॉलिसी को कैपिटल एसेट माना ही नहीं। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कैपिटल एसेट? कल तो एफडीआर भी कह दोगे कैपिटल एसेट है, एफडीआर बैंक में वो कैपिटल एसेट नहीं होती है। लेकिन अब उन्होंने क्लॉज सी डाल दी और 2 सेक्शन 14 में क्लॉज सी में लिख दिया कि इट विल इंक्लूड यूलिप, यूनिट इंश्योरेंस पॉलिसी, टू विच सेक्शन 1010D इज नॉट एप्लीकेबल। या 1010D नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? कैपिटल एसेट बन जाएगी। वेरी गुड, बना दिया आपने। अब कैपिटल एसेट में तो कैपिटल गेन लगता है 45(1) में, इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। यही है ना जी, प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, राइट। लेकिन ये ट्रांसफर कहाँ है? और ये तो पैसा जब आएगा तभी होगा ना। तो इन्होंने एक सेक्शन नया डाल दिया 45(1)(b). उस 1B में लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर 45(1). 45(1) में लिखा जब ट्रांसफर होगी तो होगा, कहता नॉट विद स्टैंडिंग इफ यू हैव टेकन ए यूलिप to which proviso 4th and 5th are applicable। क्या मतलब हुआ 4th और 5th are applicable? आपने एक साल 2.5 लाख से ऊपर प्रीमियम दिया है, खरी है ना, प्रोविजो 4th पे, 6th नहीं, 6th में तो डेथ हो गई तो 1010D लगेगा। अगर एप्लीकेबल है तो उस केस में कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा उस दिन कैपिटल गेन लगेगा। कंसीडरेशन प्राइस क्या होगी? जो अमाउंट आपको मिला या कोई चीज मिली। कॉस्ट क्या होगी सर आपकी? जो आपने प्रीमियम्स पे किया है, जितना सारा प्रीमियम आज तक का दिया है वो कॉस्ट हो जाएगा। वो 1 रुपया नहीं, वो 2.5 लाख वाला आपने तो एक साल 2.5 लाख से ऊपर दिया है, वो कहता है छोड़ो ना, शुरू से लेकर आज तक का जो प्रीमियम दिया है वो कॉस्ट हो जाएगा। सर फिर ये शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा कैसे? कोई तो पूछ रहा हूँ चवन जी, बड़ी जल्दी कर रहे हो। वो पूछता है कि सर 3 साल के बाद पैसा मिला तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए और 3 साल से पहले मिला तो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा ही है ना। लेकिन कहता है जी लॉन्ग टर्म है तो फिर इंडेक्स दोगे कि नहीं दोगे? जी दोगे कि नहीं दोगे? वो कहता है रुक जा, इंडेक्स देंगे हम, इसको टैक्स करेंगे 112A में। 112 में क्या चीज है? लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और एक और डाल दिया एंड यूनिट ऑफ द 4th प्रोविजो एंड 5th प्रोविजो। तो 112A में क्या लिखा है? 10% टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। हो गया ना क्लियर? समझ में आ रहा है पवन जी? जी लॉन्ग टर्म होगा तो विदाउट इंडेक्सेशन होगा, अगर शॉर्ट टर्म होगा तो 111A में चले जाएंगे। 111A में 15% है और वहां 10%। इंडेक्सेशन का तो भूल ही जाओ। तो इसलिए
एक सेक्शन चेंज करने के लिए कितने सेक्शन चेंज किए? चेंज करेंगे। 1010D में 3 प्रोवाइजो डाले हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में उसको कैपिटल एसेट कहा है। सेक्शन 45(1)B में उसको बोला क्या कि भैया ये कैपिटल गेन लगेगा इन द प्रीवियस ईयर इन पेमेंट रिसीट। 45 में उसकी कॉस्ट बता दी और 112A में कह दिया भाई साहब लॉन्ग टर्म, 111A में शॉर्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Yes, ये sir. आया है जी? सर इसमें Yes, सर sir. गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन क्या है सर? बेसिकली चाहती क्या है गवर्नमेंट? कोई मतलब गलत इंटेंशन नहीं है। आपको गवर्नमेंट को गाली मत दो, आप कुछ करने जा रहे हैं। आप पैसा जोड़ के, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ज्यादा पैसे देकर आप उसका फायदा लेना चाहते हैं। गरीब आदमी वाला आप ज्यादा पैसे वहां जमा करा के टैक्स फ्री इनकम लेना चाहते हैं। थोड़ी देर में बताऊंगा, तब समझ में आएगा कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है। आप चेक्स को बचाना चाहते हैं, थोड़ी देर में बताता हूं, तब जी, ये जी। इंटेंशन आप कहोगे जी हाँ मेरे समझ में आ गई। इंतजार करो, इंतजार करो। जी जी सर। ठीक है, समझ में आ गया? सर इसमें Yes, एक क्वेरी और है सर। जो ये कोविड के ये जो पेमेंट है 2.5 लाख की, ये पेमेंट बेसिस पे है या मतलब जैसे अब अरे COVID भैया 15 ये शुरू ही अभी पॉलिसी लेनी है 1 फरवरी 2021 के बाद वाली पॉलिसी, पुरानी की तो बातें ही नहीं कर रहे। जो पॉलिसी कब ली? 1 फरवरी 2021 के बाद की। पुरानी पॉलिसियों की बात ही नहीं हो रही मेरे भाई। तो कोविड क्या करेगा? अब तो कोविड नहीं रहा ज्यादा, वैक्सीन लगवा लेना थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इतना तो करते हो यार, कुछ नहीं। क्लियर हो गया? और आपको एडवांस में बता दिया है, पहले ही बता दिया है, याद रखना 2.5 से ऊपर मत देना। तो क्या गलत किया है यार? कोई गलत नहीं। आ गया। अब देखिए, एक डीमर्जर की डेफिनेशन सेक्शन 219AA में है। 2 क्लॉज 19AA। डीमर्जर में क्या होता है? यू ट्रांसफर an undertaking or a division of undertaking to another company where all asset liabilities are transferred, और जो शेयर होल्डर होते हैं 90% उनको ये आप वो दे देते हैं नए शेयर रिजल्टिंग कंपनी के, और वो कैपिटल गेन नहीं लगता, ट्रांसफर नहीं माना जाता है ना ये बात। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब डिसइन्वेस्टमेंट वो क्या रहा है? और एक और एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है कि एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जितने भी बैंकों के एनपीए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए, उसको उठाकर हम एक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाकर उसको ट्रांसफर कर देंगे ताकि बैंक अपना काम करें। ये इतने करोड़ों रुपए के एनपीए हैं, बैंक इसी में लगा रहता है रिकवरी। तो हमारे स्टेट बैंक के 5 लाख करोड़ के एनपीए, वो सारा दिन यही रिकवरी में लगे रहते हैं। तो कहता है ये काम करेंगे, ये सारे एनपीए जो लोन बुक है, जो एनपीए वाली एसेट है ना, आप ट्रांसफर कर दीजिए किसी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। आपने कोई डिवीजन नहीं बेचा, ये तो वही ट्रांसफर किए हैं और आपने ऐसे ट्रांसफर किए। तो ये डीमर्जर कहाँ है? उन्होंने 219A में AA में डीमर्जर की डेफिनेशन में ये इंक्लूड कर दिया। क्या? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, public sector bank, a company, public sector company, or splitting off a public sector company by transferring the asset to another public sector company will not be regarded as transfer. Will be regarded as demerger. Will be regarded as demerger. और demerger हो गया तो आपको टैक्स लगना ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये क्या बढ़िया काम किया, एक बैड बैंक बना। तभी तो स्टेट बैंक के शेयर और बाकी से पब्लिक सेक्टर के बैंक के शेयर रोजाना ऊपर छलांग मार रहे हैं। 300 कितने का हो गया स्टेट बैंक का? 220-25 पे घुमा करता था, 340-50 तो हो गया। वैसे तो सवेरे देखा ही होगा आपने, क्योंकि जो शेयर लगाते हैं वो सारा दिन यूं ही तो करते रहते हैं। अरे क्या कैनरा बैंक कल कितना बढ़ गया? पीएनबी भी बढ़ा है सर। पीएनबी भी बढ़ा है सर। पीएनबी पे बड़ा है, बड़ा लगाया हुआ है। वो बड़ा बेचारा 30 रुपए से ऊपर जाता ही नहीं था, आज भी बढ़ा हुआ है, 38 रुपए हो गया पीएनबी। अरे आपका कैनरा बैंक बढ़ा, पीएनबी बढ़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़ा, ये सारे पब्लिक सेक्टर तो ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस कारण से कि भैया ये उठाकर उधर कर देंगे, और फिर 72A डाल दिया। 72A में है लॉस का क्या होगा। वो कहता है जो नई बैंक बनेगा उसको लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फ्रेश अलाउ कर। कितने साल?
8। समझ में आया? तो ये सिर्फ इसका नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंकों से, इवन उनका भी करेंगे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है और डिसइन्वेस्टमेंट करना है। समझ में आ रहा है? जी जी ये जी। Yes, वो sir. डिसइन्वेस्टमेंट करके उधर ले जाएंगे एसेट, वहां पर भी जो भी करना करे। क्लियर हुआ? ये है सेक्शन 219AA रेड विद सेक्शन 72 कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो आपकी बात कह रहे थे, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है, मैं बताता हूं क्या चाहती है। बात है, मैं जब इनकम टैक्स एक्ट लिख रहा था जो पिछले साल खत्म किया हमने, हम ढूंढ रहे थे क्या क्या लूप होल है और क्या क्या बेनिफिट देने चाहिए नए लॉ में। क्योंकि वो भी बता रहे थे, लेकिन वो हमेशा प्लग करने की बता रहे थे, बेनिफिट नहीं देना चाहते थे। मैं कहा एक कंडीशन बता रहा हूं, मैं एक आपको बताऊंगा जिसमें आपको काफी फायदा होगा, लेकिन ये वाला बेनिफिट हमें दे देना। सर मेरा वाला पॉइंट तो नोट करके अगले साल लॉ बदल दिया, लेकिन बेनिफिट नहीं दिया। ये सरकार है ना, क्या करूं। अब वो सुनिए क्या था, जरा ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है और हर एक को समझना चाहिए। आप लोग अफेक्टेड नहीं है, बड़े लोग। हमारी कंट्री में आजकल जो सीईओ हैं, सीएफओ हैं या बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, मुकेश अंबानी वाले हैं, वो बहुत मोटी मोटी अमाउंट की सैलरी लेते हैं, फैट अमाउंट ऑफ सैलरी लेते हैं। कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़ सैलरी ले रहा है साल की। मैं जिस कंपनी में औरों में भी डायरेक्टर हूं, वहां पर भी सीएफओ की सैलरी 5 करोड़ की थी, सीईओ की सैलरी 6 करोड़ की। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन हुआ क्या, एक बड़ी प्लानिंग होती थी। हमारे यहाँ लॉ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। है ना, 12% तक माफ है, पर उसमें लिमिट नहीं है। तो ये बड़े बड़े आदमी क्या करते थे, 5 करोड़ सैलरी ली, 12% प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करवा दिया एम्प्लॉयर से। कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया अधीश जी? 60 लाख। ये 60 लाख एम्प्लॉयर को तो डिडक्शन मिल गई, पर एम्प्लॉय के हाथ में क्या है? एग्जेम्प्ट है, क्योंकि 12% है, एग्जेम्प्ट है। और फिर वो पैसा जो जुड़ता रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, इंटरेस्ट के इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और करोड़ों रुपया वापस मिल जाएगा जब वो रिटायर होंगे, और एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलके टैक्स कम करा लिया एम्प्लॉयर ने, लेकिन यहां पर इनकम पूरी माफ है कि नहीं माफ है? ग्रो रेवेन्यू गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो कहने लगे ये तो हमने कई सालों से सोचा ही नहीं, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। मर गया मैं। अगले साल ही लॉ बदल दिया। क्या कर दिया? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सैलरी शेल बी एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ द सैलरी और ₹7,50,000 विच एवर इज लेस। मर गया बेचारा। गाली दे रहा है वो मुझे, मेरा सीएफओ और सीईओ, सर मरवा दिया, घर के आदमी नहीं मरवा दिया। तो मैंने कहा मैंने तो मुकेश अंबानी को मरवाया था, बीच में आपकी बात है, 8 साल खून तो पिसता ही है, मैं क्या करूं। क्या हुआ? 60 लाख रुपया जो कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, उसमें सिर्फ 7,50,000 रुपया एग्जेम्प्ट होगा, और बाकी 52,50,000 आपका परक्विजिट मानकर आपसे टैक्स ले लेंगे। 52,50,000 पे टैक्स अभी दे दो, पैसे तो बाद में मिलेंगे। और बाद में ये भी लिख दिया, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा 52,50,000 पर, वो भी हर साल टैक्स कर देंगे। मर गए सारे। पर अमीर आदमी है, छोटे नहीं है, फायदा हो गया, लेकिन मैंने मरवा दिया। मेरे से सारे कॉर्पोरेट हाउसेस नाराज है, ये आपने किया है, और किसी को समझ में नहीं आया। वहां पर एक चेयरमैन भी बैठे थे ENY के, वो मेरे स्टूडेंट थे, उसने उठाकर सबको बोल दिया ये तो आहूजा साहब ने करवाया। अब मर गया मैं, साले तूने मेरे को मरवा देगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, लॉ तो लॉ है। ओके, इस बार जो हुआ वो मैंने नहीं किया, वो भी सुन लो। क्या है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन मिलती है पवन जी, कितनी?
एटीसी में 1.5 लाख, 1.5 लाख है सर। इससे ज्यादा तो नहीं मिलती। जी जी। लेकिन एम्प्लॉय बड़े समझदार हैं, वो पूरा काफी पैसा जमा करा देते हैं प्रोविडेंट फंड में। हमारे को ऑथर है, आप किताब देखी होगी, उसमें लिखा डॉक्टर गिरीश आहूजा, रवि गुप्ता जी, जी जी जी। एडवोकेट हैं और श्रीराम कॉलेज में पढ़ाते भी थे, अब रिटायर हो गए। वो क्या करते थे, जब इनकम बहुत है तो वो क्या करते थे, अपनी जितनी सैलरी मिलती थी प्रोविडेंट फंड में डाल देते। क्या फायदा हुआ आप पूछेंगे, डिडक्शन तो 1.5 की मिल रही है। कहते कोई बात नहीं, लेकिन जो पैसा जमा कराया उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो टैक्स एग्जाम्प्ट है, वो तो एग्जाम्प्ट है। और जी, खूब जी। मजे में एफडीआर बन गई है और टैक्स फ्री इनकम लेकर आराम करेंगे। और करोड़ों रुपया ले लिया, अब तो रिटायर हो गए। अब लॉ ने क्या बनाया, वो यही तो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद आपने चेंज करा दिया। भैया मैंने नहीं कराया, और लॉ क्या बन गया, अब क्या बना, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड if the amount contributed is more than 2,50,000 in a year, 2,50,000, then the interest on the excess amount of 250 shall become taxable. इंटरेस्ट पे टैक्स लगा दिया, इसी का तो फायदा ले रहे थे। 2.5 लाख तक तो ठीक है, और आपने 6 लाख कंट्रीब्यूट किया है तो जो 3.5 लाख का इंटरेस्ट आया उस पर टैक्स दे दो आज। अरे बैंक एफडीआर में रखते तो भी तो टैक्स देते हो, कल को कोई कंपाउंड है तो क्या हुआ, कंपाउंड पे भी तो देते हो टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा। मर गए सारे। अब 2.5 लाख से ऊपर करोगे, कर लो, पैसा आपका है, लेकिन इंटरेस्ट को टैक्स लगेगा। पहले तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट था, अब तो टैक्सेबल इंटरेस्ट हो। समझ में आ गया? जी। तो बजट तो सब पढ़ते हैं, यही अंदर की बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। समझेंगे कि क्यों करा। ये पवन जी पूछते हैं सर ये सरकार क्यों करती है, समझ में आ गई परपत जी? सरकार क्यों करती है? आप प्लानिंग करके इंटरेस्ट माफ करा के जाते जा रहे हैं, और बाकी जो एफडीआर बनवा रहा है उसको तो टैक्सेबल इंटरेस्ट है, और आपने अकल लगाई और प्रोविडेंट फंड में डलवा दिया और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, और आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री इंटरेस्ट, और प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। एफडीआर में तो 6 साढ़े 6 मिलेगा, वहाँ 8 भी मिल जाएगा, 8 साढ़े 7 8 मिलते। जी जी जी, ठीक हो गया? तो समझ में आ गई? सरकार को गाली मत दो, सरकार ठीक कर देगी। ये सरकार प्लानिंग मत करा करो ज्यादा, क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए और कुछ क्या थोड़ी रही है, टैक्स दो, कहां से लाएं? आप अमीर आदमी हैं और आप ऐसी प्लानिंग कर करके सब टैक्स बचा लेते हैं। गरीब आदमी तो बचा नहीं सकता ये वाला टैक्स, उसके बाद खाने के पैसे नहीं है, प्रोविडेंट फंड में कहां से जोड़ देगा 2.5 लाख से ऊपर? वो तो 12% बड़ी मुश्किल से जोड़ता है ताकि उसको डिडक्शन लेनी है। मिडिल क्लास भी नहीं कर सकता, ये तो हाई ब्रैकेट वाले ही करते हैं ना। उसको भी बोल दिया भाई साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कितना 2.5, उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स कर दे, ठीक हो गया? तो ये अब तो दोनों मर गए, वो बड़े वाले लोग इधर से भी मर गए अपना कंट्रीब्यूशन में, उधर से भी मर गए, ठीक है ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चैरिटेबल ट्रस्ट का काम कर रहा है उसको कुछ गुड न्यूज भी है, कुछ क्लैरिफिकेशन भी है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने गुड न्यूज मैंने नहीं कराया, लेकिन क्लैरिफिकेशन मैंने कराई है। मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा गुड न्यूज का, वो सरकार ने किया है। वो सरकार क्या है, वो जो वहां पर एमपी बैठे हैं ना, उनके भी तो स्कूल कॉलेज चलते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने करवा दिया। क्या करा है सुनिए। आपको पता है एक सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3IA-D और 3IA ही है। क्या है वो? क्या है वो? अरे मुझे पता है, आपको उसके चीज पता है, मजमून पता है, लेकिन सेक्शन का नाम याद नहीं है। मैं इंप्रेशन मार रहा हूं आपके ऊपर। 1 करोड़ तक, 2 करोड़ 1 करोड़ की लिमिट है ना जी। सर एंटरटेन करना पड़ता है। 1 करोड़ वाला, यस, लिखा है इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन शेल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ द ग्रॉस रिसीट ऑफ दैट डू नॉट एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट, जो उन्होंने बाद में नोटिफाई करी 1 करोड़। जो छोटे छोटे स्कूल कॉलेज हैं 1 करोड़ तक, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। आप 85% का लिए भी जरूरी नहीं है, खर्च करो ना करो, वहां पर कुछ भी नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ रिटर्न मांगेंगे, ऑडिट भी नहीं करवाने के लिए कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे।
ऐसे तरह 3IAE है, income of a hospital or medical institution not for making profit but for philanthropic purposes shall be fully exempt if the gross receipts do not exceed 1 crore. है ना दोनों? है ना? पता था आपको? सिर्फ सब क्लॉज 3IAD का नाम याद नहीं था और 3IA का ध्यान नहीं था। पता तो सबको है, मुझे मालूम है, लेकिन अब ये लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए, तो छोटे छोटे स्कूल, ये किसने करवाई? भैया लीडरों के सबके स्कूल कॉलेज है, तो वो कह रहे थे सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, उन्होंने 5 करोड़ लिमिट कर दी। अब 5 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रिटर्न भरनी है, कोई 85% वाली कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई ऑडिट कराने की कंडीशन नहीं है, वो 3BB की रिपोर्ट नहीं देनी और आप 5 करोड़ तक माफ हो। लेकिन रुकिए, थोड़ा सा तो उन्होंने नीचे डाल ही दिया एक्सप्लेनेशन में कि देखिए अगर आप कॉलेज भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, साथ में हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, दोनों इकट्ठे चला रहे हैं एक ही ट्रस्ट के नीचे, तो दोनों का मिलाकर 5 करोड़ होगा, अलग अलग नहीं होगा। दोनों का मिलाकर 5 करोड़ होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? ये आया नया लॉ जो आपको रिलीफ दिया गया छोटे छोटे स्कूल कॉलेज को। चलिए, कोई क्वेरी? अब देखना, अब ध्यान से सुनना। आपको मालूम है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में लिखा है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट। पूरा का पूरा माफ है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है कॉर्पस डोनेशन। आपको मालूम है कॉर्पस फुल्ली माफ। और पिछले साल चैरिटेबल ट्रस्ट के 1023C में मैंने ये डलवा दिया था कि भाई स्कूल कॉलेज को भी कॉर्पोरेट डोनेशन पूरा माफ होगा बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन अंडर प्रोविजो 3। हमने अलाउ करवा दिया था कॉर्पस माफ। लेकिन एक गलती बड़े दिनों से चली आ रही है, गलती थी नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि कॉर्पस डोनेशन में कहाँ लिखा है कि कहाँ पर पैसा रखना है। हम इसको कहीं भी रखें, ये तो हमारी मर्जी है, इसको हम शेयर में ले लें, वहां ले लें, हमारी मर्जी है, लिखा तो है नहीं। लेकिन अब इन्होंने लिख दिया कॉर्पस डोनेशन तब माफ होगी जब उसका पैसा आप इन ए मोड अंडर 11(5) में रखेंगे। अगर 11(5) में नहीं रखेंगे तो हम कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं करेंगे। और 11(5) तो बाकी पैसे भी तो रखने पड़ते हैं 11(5) में। 11(5) को तो पता है, बैंक में रखिए, FDR बनाइए, नोटिफाइड डिवेंचर्स लीजिए, यूनिट लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी लीजिए, लेकिन ये अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं। तो उन्होंने कहा कॉर्पस डोनेशन अब तब माफ होगी जब 11(5) में रखेंगे। अगर 11(5) में नहीं रखेंगे तो कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं होगी। कोई गलत बात नहीं करी, गलत बात नहीं करी, पैसा मिस यूज ना हो, 11(5) में रखो। अब जरा ध्यान से सुनना, ये तो अच्छी बात करी। अब दूसरी बात देखिए, एक सोबरोस फाउंडेशन की जजमेंट आई थी जिसमें कहा गया था, पहले हाईकोर्टों की थी लेकिन ये मानते नहीं थे। सोबरोस फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सपोज कीजिए आप पर इस साल 1 करोड़ रुपया इनकम आई है, लेकिन खर्चा 1,20,00,000 हो गया। तो ये एक्स्ट्रा जो एक्सेस एप्लीकेशन हुई, क्या मैं ये कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल की एप्लीकेशन मान लूं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी। तो जजमेंट आई थी, यस, अगले साल की एप्लीकेशन ये मानी जा सकती है, लेकिन अभी तक फॉर्म में भी नहीं था कुछ, लेकिन ये जजमेंट आ गई थी। अब उस जजमेंट को इन्होंने हटा दिया, ये भी गई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं, आराम से सुन। 1,20,00,000 20 लाख कैरी फॉरवर्ड होता था, अगले साल की एप्लीकेशन वो कह दिया नहीं होगा। अब आइए, आपका कॉर्पस में 11(5) में 3 करोड़ रुपया पड़ा है, 11(5) में रखा है, माफ है ना? अब इस साल आपके पास 1 करोड़ रुपया आया और आपका खर्चा 1,20,00,000 हो गया। अब वो 20 लाख आपने कहां से लिया होगा? कॉर्पस से। कॉर्पस से लिया होगा? नहीं, वो वाला भी होता है 15% वाला, जो 15% एक्यूमुलेट किया। मैं कह रहा हूं कॉर्पस से लिया, 15% वाला नहीं लिया, कॉर्पस से लिया। सुनिए, ये एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि कॉर्पस तो पहले ही माफ है। 2 बार ये एप्लीकेशन थोड़ी दे देंगे, ले एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा क्योंकि कॉर्पस यूज किया है। और सर कैरी फॉरवर्ड अलाउड था,
लेकिन आपने तो मरवा दिया। चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, हमने नहीं मानेंगे एप्लीकेशन। लेकिन अगले साल जो इनकम आई उसमें से जो कॉर्पस से यूज किया था वो कॉर्पस को वापस ट्रांसफर कर दो, उसका कॉर्पस रीफिल कर दो, तो हम आपको इसको एप्लीकेशन मांग लेंगे अगले साल की। कैरी फॉरवर्ड हो गया ना इन प्रकार से। मतलब जो 20 लाख इस साल आपने खर्चा कर दिया कॉर्पस से, कोई बात नहीं, अगले साल इनकम से 18 लाख कॉर्पस को वापस दे दिया तो वो 18 लाख एप्लीकेशन हो गया, वो 85% की लिमिट में आ गया। उससे अगले साल 2 कर दिया तो हो गया। तो बात समझ में आ रही है कि कॉर्पस डोनेशन को इस साल का एप्लीकेशन नहीं माना, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि कॉर्पस से एज इफ लोन ले लिया है, और जब आप उसको वापस कॉर्पस को रीफिल कर दोगे हम आपको इसको, इसलिए अब सुब्रोस फाउंडेशन को हटा दिया। लेकिन वो जो 15% वाला है उसमें से खर्च करोगे तो नहीं। क्यों नहीं? उसका एग्जेम्पशन तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, उससे नहीं होगा। लेकिन अगर कॉर्पस से किया और कॉर्पस को दोबारा रीफिल कर दिया, आपका कॉर्पस खाली नहीं होगा तो आप उसको एप्लीकेशन मान लें। कोई बुरी बात करिए, अच्छी बात करिए। कॉर्पस के लिए आपका एक पूरा रहेगा, आपका कॉर्पस खाली नहीं होगा। आपका अगले साल से लेकर कैरी फॉरवर्ड तो एक प्रकार से हो ही गया ना, एक प्रकार से कैरी फॉरवर्ड तो हो ही गया, क्योंकि आपने अगले साल की एप्लीकेशन मानकर उस पैसे को कॉर्पस में वापस डाल दिया। ठीक है जी, सुब्रोस खत्म। अब सुब्रोस फाउंडेशन खत्म, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने डाल दिया कि कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होगा। अब देखिए क्या हो रहा है। अब मैं सवाल पूछता हूं पवन जी से, वो एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को टैक्स के, तो मैं उनसे पूछ लेता हूं, सुनिए। और आशा जी से भी पूछता हूं। आपके एक कॉलेज की बिल्डिंग खरीदनी है, 4 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदनी है, आपके बैंक में सिर्फ 1.5 करोड़ पड़ा है, आपने 2.5 करोड़ लोन लिया और 4 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एप्लीकेशन होता है ना, तो बताइए कितना एप्लीकेशन हुआ इस साल का, कितना एप्लीकेशन किया? वो बोलेंगे हमें पता है तो मैं गलत बोला। 1.5 करोड़ तो क्या मोस्टली सीए कहते थे 1.5 करोड़। वो मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है, हो सकता है आपने मेरा लेक्चर सुन लिया, बता दे पकड़ेगा नहीं तो शुरू में ही कहा जी। तो वो 4 करोड़ रुपया एप्लीकेशन करते थे। अब मैंने कहा तो क्या बातें कर रहे हो, लोन कोई इनकम थोड़ी है, इनकम होगी तो अप्लाई करना है ना, लोन तो इनकम है ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे 4 करोड़ लगा? कहते नहीं जी 4 करोड़ लगा। अरे वो अकाउंटेंसी के लिए ठीक है कि अकाउंटेंसी में एसेट 4 करोड़ की दिखाई, 1.5 करोड़ रुपया बैंक कम कर दिया और 2.5 करोड़ रुपया लोन ले लिया, खड़ा कर दिया, अकाउंटेंसी में टैली हो गया। इनकम टैक्स कहता है अकाउंटेंसी से मुझे क्या लेना देना, तुमने तो अप्लाई 1.5 करोड़ ही किया है, बाकी 2.5 करोड़ तो लोन है, मैं इसका एप्लीकेशन नहीं मानूंगा। जब लोन को रीपे करोगे तो ले लेना एप्लीकेशन उस साल, मतलब वो 2.5 करोड़ को जब रीपे करोगे उस साल का एप्लीकेशन ले लेना, लेकिन आज का एप्लीकेशन नहीं। और उसमें इंटरेस्ट दोगे तो वो भी एप्लीकेशन हो जाएगा। बताओ क्या बुरी बात है, क्या गलत है? ये नहीं, वो ठीक है ये, और ये होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छे प्रोविजन मैंने डलवाए हैं। बाद में रखड़े मेरे से मानते नहीं थे, कहते जी लिखा था। अरे मैंने कहा ले, अब लिख दिया मैंने, करवा ले तो जो कर। और गलत नहीं है, ये सही है, लिटिगेशन खत्म हो गया इससे। अननेसेसरी लिटिगेशन करते थे। अरे लोन इनकम ही नहीं है तो आप उसको कैसे एप्लीकेशन मान लो? एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है, कैसे मान लोगे? एप्लीकेशन तो डेढ़ी है। मेरी कई बार बहस होती थी, और हमारे कई सेंट्रल काउंसिल मेंबर जब लेक्चर दिया करते थे वो कहते नहीं आप गलत हैं। मैं हो सकता है सर मैं ही गलत होऊंगा, आप बिल्कुल ठीक। चलो एक्ट में चेंज करा देते नहीं देखिए एकेडमिक डिस्कशन है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको हैप्पी मानता हूँ। डिफरेंस नहीं आएगा तो फिर मजा क्या आया? क्योंकि आफ्टर ऑल दिमाग लगा रहा है, वो भी पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़े लिखे, लेकिन लॉजिक से तो चलिए ना। हर चीज कहोगे इनकम टैक्स में लिखी नहीं है, लॉजिक को देखेंगे ही नहीं। अरे जब लोन इनकम ही नहीं है तो उसको अप्लाई करके कैसे एप्लीकेशन मान लोगे? या तो उसको एक्सेस एप्लीकेशन, तो ये ठीक हो। सर ये सब चेंजेस आई है चैरिटेबल ट्रस्ट में। कोई चीज पूछनी हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। पूछना तो पूछ लीजिए इसमें।
बोलिए, कोई पूछना है? एक मेंबर की क्वेरी आई हुई है सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। फ्रॉम डेफर्ड टैक्स पर्सपेक्टिव, विल गुडविल बी कंसिडर्ड एज ए टेम्परेरी और परमानेंट डिफरेंस? सर देखिए, अकाउंटेंसी की बातें कर रहे हैं जी कि हाँ। जब आपको उसको मिलना ही नहीं है, अनसर्टेनिटी है, जब तक गुडविल बेचोगे नहीं, तब डेफर्ड क्या लायबिलिटी और क्या एसेट हो गई, क्या ये assets हो गए, ठीक है जी। क्या हो गई? ये तो फिक्टिशियस एसेट है। वो तो तब होगा जब बेचने का कारण होगा, अभी तक तो कोई लाभ आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तब जब बेचोगे, तो वो इवेंट जो है उसका तो कोई और चीज है। पहले तो और थी, डेप्रिसिएशन मिलती थी, अब तो वो चीज है ही नहीं, तो वो तो छोड़ दो ना। आगे चलो, और कोई है? नहीं सर अभी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर मुझे कहोगे मैं क्या करूं। ऐसा है, हमारे एक स्टूडेंट थे, शिलांग कॉलेज में ही थे, वो हाई कोर्ट के जज बन गए, बड़े फेमस जज बने। उसके बाद इनकम टैक्स में एक्सपर्ट हो गए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, और वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हो गए। मेरे स्टूडेंट हैं, वो रिटायर हो गए, मैं रिटायर नहीं हुआ। प्रोफेशनल कभी रिटायर नहीं होता, वो तो वो वाले रिटायर होते हैं, प्रोफेशनल कहाँ रिटायर। वैसे वो भी नहीं हुए, वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, वैसे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना काम आर्बिट्रेशन का कर रहे हैं कि पूछो नहीं। तो वो एक दिन मेरे को याद है, हाई कोर्ट की जजमेंट ने एक 36 सेक्शन 1 क्लॉज वीए में लिखा हुआ है, employee contribution to provident fund or ESI shall be allowed as deduction only if the payment of the same is made on or before the due date under the respective act. Respective act का मतलब था Provident Fund Act और ESI Act। लेकिन राजेंद्र नारंगी भी आ गए हैं, तो राजेंद्र जी क्या हुआ, उन्होंने क्या जजमेंट दी कि देखिए सर, जब प्रोविडेंट फंड वाले ईएसआई वाले लेट पेमेंट ले लेते हैं, तो इनको क्या तकलीफ है, ये खर्चा अलाउ नहीं कर रहे। तो इन्होंने कहा कि आप 43B के हिसाब से ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक दे देंगे तो हम आपको ये डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं। हालांकि लॉ में नहीं था, उन्होंने अलाउ कर दी, और वो जजमेंट आई थी एमिल इंडिया लिमिटेड की, दिल्ली की। राइट। क्योंकि बड़े पढ़े लिखे थे, अच्छे इंसान थे, ऑनेस्ट इंसान थे, तो 12 हाई कोर्ट ने हमारे जजमेंट फेवर में दे रखी है, और हम इसके लिए लड़ते रहते थे कि लेट हुआ तो क्या हुआ, कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट की अलग थी, और ये 1-2 सालों से सीपीसी भी आपको अलाउ नहीं कर रहा, वो वाला सीपीसी में नहीं कर रहा, वो ऐड कर देता है, टैक्स लगा देता है उस पे, लगा रहा है, लेकिन लगा रहा है सर। हाँ जी। लेकिन बाद में इंटरनल इंस्ट्रक्शन दे दी थी, ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट की बात मान लो, इंटरनल दी थी। लेकिन अब क्या करा है, कर दिया बेड़ा गर्क। 36(1)(BA के नीचे एक्सप्लेनेशन डाल दी है, और 43B के नीचे भी एक्सप्लेनेशन डाल दी है। उसमें लिखा है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द ड्यू डेट मेंशन्ड हियर shall not be applicable for the purpose of 43B। 43B की ड्यू डेट का मतलब हो सकता है रिटर्न, लेकिन यहाँ ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद 43B। मीनिंग देयर बाय, अब तो प्रोविडेंट फंड 15 तारीख तक जमा करा दो, एक दिन भी ग्रेस नहीं है, पहले ग्रेस भी मिलती थी 5 दिन, वो भी खत्म हो गई, और ESI 21 तारीख तक जमा करा दो तो हम आपको डिडक्शन देंगे, नहीं तो वो अमाउंट आपकी इनकम मान लेंगे जो आपने पैसा काट के रखा हुआ है। समझ रहे हैं? मर गए लोग। अब आप कहेंगे सर पुराने केसों का क्या होगा। इस गवर्नमेंट ने एक छोटी सी एश्योरेंस दे रखी है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो तो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से होती है जब लॉ बना। फिर भी गवर्नमेंट ने कहा है मुझे, हम ये केसेस पुराने नहीं खोलेंगे, आपको ये एश्योरेंस दे रहे हैं आगे से वो। लेकिन रुकिए, जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, कहता वो कोर्ट डिसाइड करेगी, हम नहीं जानते। कोर्ट ने दे दिया आपको रिलीफ तो दे दिया, नहीं हम उस पर कोर्ट से लड़ नहीं रहे, लेकिन आगे से तो हमने बता दिया कि कोर्ट कुछ नहीं कर सकता हमारा, हम ये 15 और 21 तारीख में जमा करा दीजिए, नहीं तो आपको फॉर्म 3CD में भी लिखना है, और लिखकर वो इनकम मान ली जाएगी किसकी, एम्प्लॉयर की। ये क्लियर हो गया तो बात करें आगे। ये 36(1)(BA में एक्सप्लेनेशन डाली और 43B में भी एक्सप्लेनेशन डाली।
क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। चलिए, अब अपने क्लाइंट को बता दीजिए एक दिन भी डिले ना करें, नहीं तो पैसा गया, इनकम मान ली जाएगी, टैक्स आपसे ले लेंगे, हालांकि आपकी वो इनकम तो थी नहीं, आपने तो उससे पैसा काटा था। वो कहता ना। अगला पॉइंट, कई शहरों में बिल्डर कह रहे हैं कि सर स्टैंप ड्यूटी तो ऐसे बढ़ा दी है कि पूछो, एक्चुअल सेल प्राइस फ्लैटों की कम है, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी। अब स्टैंप ड्यूटी 1 करोड़ रुपए का, मेरा फ्लैट 75 लाख का बिक रहा है, अगर मैं 43 CA में लिखा कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से बेचना पड़ेगा, अगर मैं 1 करोड़ का 75 का बेचता हूं, लेकिन मुझे प्रॉफिट तो 25 मांग के 1 करोड़ का माना जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से, और जो बायर है उसको भी 25 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। सर बड़ा गलत बात है, लेकिन आपको मालूम है पहले 5% का रिलीफ था, फिर 10% कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए अप टू 30 जून तक उन्होंने एक और चीज निकाली है 12 नंबर से, कि अगर आप फ्लैट है जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, रेजिडेंशियल यूनिट है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है बाय द बिल्डर टू द ईयर, उस केस में हम आपको 20% का मार्जिन दे देंगे, 20% का मार्जिन, ओनली लिमिटेड पीरियड अप टू 30 जून। क्या हुआ? मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1 करोड़ का बेचना है, स्टैंप ड्यूटी है, अगर आप 80 लाख का बेचेंगे तो अजीज जी 80 में 20% जोड़िए, 96। स्टैंप ड्यूटी इज मोर देन 96, इसमें तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेकर 1 करोड़ के ऊपर के हिसाब से ही करना पड़ेगा, और उसको बायर को 20 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, 1 करोड़ माइनस 80 लाख। लेकिन अगर आपने इसे 85 का बेचा तो 85 में 20% जोड़िए, 17 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, इट डज नॉट एक्सीड, तो इस केस में आपको प्रॉफिट भी 85 के हिसाब से देना पड़ेगा और बायर को 85 ही लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये टेम्पररी रिलीफ दे दिया 20% का, 10 का तो सबको दिया हुआ है, 10 का तो सब पे दिया हुआ है। तो ये 43 CA रेड विद 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में चेंजेस डाली गई हैं। क्लियर हो गया? अगला जो है वो मैंने नहीं कराया, मेरा काम नहीं है ये गलत काम करना, पिछले साल भी हो गया था, अब इस साल भी हो गया, और वो है 44AB। पिछले साल लिमिट 1 करोड़ की 5 करोड़ कर दी थी, इस बार लिमिट 5 करोड़ की 10 करोड़ 10 करोड़ कर दी। वो कहते हैं हो गया बहुत, अब डिजिटल हो गया, अब सब कुछ पता है हमें, इसलिए हमें अब ऑडिट नहीं कराना। पहले तो था, पहले तो हमें को कराते थे, अब कहते हैं डिजिटलाइज हो गया है, अब क्या दिक्कत है, क्योंकि 95% पेमेंट अदरवाइज इन ए मोड अदर देन इन कैश होनी चाहिए, और 95% रिसीट भी होनी चाहिए। तो सारा तो रिकॉर्ड है और उसकी इंफॉर्मेशन हमें है, हम क्यों कराए? हम तो क्लाइंट को बेनिफिट दे रहे हैं। अरे दे रहे हो भैया, मरवा तो हमें दिया, पहले तो 5 करोड़ किया और अब 10 करोड़ कर दिया, अब तो 90% ऑडिट ही चले गए आपके, और पर्टिकुलर हिसार में भी 90% तो चले ही गए। बहुत कम लोग हैं जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। अब ये काम तो खत्म हो। 95 पेमेंट वाले भी नहीं है सर, सारे नहीं है तो वो कराएंगे, वो तो 1 करोड़ से ऊपर ही है। अरे वो कर लेंगे आप 95 वाले। अरे सर आपको लग रहा है, आपको बताऊं मैं, बुरा मत मानो जी, ये सारे के सारे तंग करते हैं हमें, इनके रिकॉर्ड कोई ठीक है ही नहीं, ना इनके पास इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड है, ना इनके पास कोई और रिकॉर्ड है, और हमें जब फॉर्म 3CD लिखना पड़ता है हम उसमें नॉट एप्लीकेबल ही लिख देते हैं। इन्हें तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर कॉलम में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और कल पकड़े गए तो डिसिप्लिनरी एक्शन हमारे ही ऊपर होता है, नजला सारा हमारे पे गिरता है, और थोड़े से पैसों के लिए हम फंसे पड़े। अच्छा चला गया, अब कहोगे यार ये क्या, हमारा तो धंधा ही ये था। अरे घबराओ नहीं, 90% केसेस में पवन जी जो फीस मिलती थी वो कंबाइंड ही मिलती थी, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता था वो टैक्स ऑडिट का। बिल्कुल सर, वो पैकेज एक्स्ट्रा कोई नहीं मिलता था, तो अब तो करना ही नहीं है, रिस्क खत्म हो गया। जो एक्स्ट्रा लेता था वो बाहर है ना, नहीं तो रिस्क तो खत्म हो गया,
सारा दिन टेंशन रहती थी यार इसका 3CD भरो और सारा ही गलत है, मुसीबत है, क्या करूं, छोड़ूं कि ना छोड़ूं, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, ड्यू डेट का प्रेशर होता है सर, फिर लास्ट में सबमिट ही कर देते हैं, फिर कर देते थे, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। अब ना छोड़ा ना मारा, वो डिपार्टमेंट देखेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया? लेकिन हमारे कुछ महानुभाव हैं, मेरे को पूछते सर हम तो ऑडिट कर देंगे, हमें तो कुछ नहीं करना, बताएंगे नहीं। मैं करके क्या फायदा होगा? उसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 जुलाई हो जाएगी, अक्टूबर नहीं होगी। बिल्कुल। अक्टूबर तो तब है जब टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, मैंडेटरी होगी, बिल्कुल। या मैंडेटरी नहीं है तो जुलाई होगी, मर जाएगा और फंसवाया जाएगा, अपने आप उसको भी फंसा देगा, क्योंकि कई चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी अगर आपने रिटर्न गलत भेज दी। समझ में आ रहा है? सो हो गया ना, ये सिर्फ ये थोड़ी हुआ है, जीएसटी ऑडिट भी तो चला गया है। ये काम इंस्टीट्यूट का है, ये इंस्टीट्यूट जाके लड़े, एक अकेले आदमी के बस का नहीं है। Why don't इंस्टीट्यूट टेक अप द एक्शन कि ये क्या कर दिया 10 करोड़ वाला और ये क्या कर दिया टैक्स ऑडिट वाला। इलेक्शन तो वो लड़ते हैं, मजे तो वो लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हम क्या करें। अरे भैया आप नहीं करो तो और कौन करेगा? यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर पैटर्निटी। जरो ना, लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ते जाकर कि ये 10 करोड़ क्यों किया है? वहां तो वो डर जाते हैं कि कल इंस्टीट्यूट को टेक ओवर ना कर लें। अरे भैया डिसिप्लिनरी का लॉ आ रहा है नया, तीनों इंस्टीट्यूट का, और बिल आ जाएगा इस बारी बजट इसमें पार्लियामेंट सेशन में। जी। तो भैया अपने आप को बचा के चलो, जो चला गया चला गया। अरे कारो भी आ गया, साला दिक्कत आती है, चला गया सोचा। और 10 करोड़ पे तो आईसीडीएस भी नहीं लगता, 10 करोड़ तक तो आईसीडीएस भी लगता है। जाओ ना, छुड़ाओ, जाना, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ फिर वो बात ठीक है पवन की, 95% दोनों देखना है, उसके बगैर तो 1 करोड़ ये लिमिट है। ठीक हो गया? 1 करोड़ ही है सर। हाँ जी। आगे चलते हैं। अब एक और प्लानिंग हम लोग बहुत करते थे, पार्टनरशिप का पार्टनर को जब कई बार डिसोल्यूशन होता था तो हम उसको एसेट इन काइंड दे देते थे, एसेट इन काइंड। और 45(4) में लिखा हुआ है, अगर एसेट इन काइंड दोगे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालकर कैपिटल गेन टैक्स लगाना है। किसको? फर्म को, है ना ये, और एओपी का भी है 45(4). और वहां लिखा था डिसोल्यूशन और अदरवाइज। कई कहते थे डिसोल्यूशन कवर्ड है, रिटायरमेंट कवर्ड नहीं है, रिटायरमेंट में हम दे दें तो कवर्ड नहीं। एएन नायक की जजमेंट थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, रिटायरमेंट भी कवर्ड है, लेकिन बाकी कोर्टों की जजमेंट थी नहीं, सिर्फ डिसोल्यूशन कवर्ड है। लीजिए 45। और फिर कुछ और क्या लोग करते थे, पार्टनर रिटायर हो रहा था ना, तो पहले एसेट को 1 साल पहले रीवैल्यू कर देते, रीवैल्यू, और उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, और फिर उतना कैपिटल उसको दे देते थे। कहते थे इसमें टैक्स रखना ही है, हमने तो कैपिटल दिया है, दिया क्या है, ये नहीं बताया कि रीवैल्यूएशन करके उसका प्रॉफिट जो है रीवैल्यूएशन का उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। 40 लाख कैपिटल था, 20 लाख रुपए रीवैल्यूएशन का डाला, 60 लाख रुपए उसको पकड़ा दिया। और कई बार सेल्फ जनरेटेड वैल्यू को भी ले आते थे बुक्स में और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते। अकाउंटिंग एंट्री है, और फिर कहते थे पार्टनर का ये कैपिटल हम उसको दे रहे। लीजिए 45(4) को बंद करके अब 2 सेक्शन बना दिए, 45(4) एंड 45(4)(a). अशोक जी कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। अशोक जी मैं जो कह रहा हूं वो लॉ है। अशोक गोयल जी बैठे हैं मेरे सामने, सीनियर आदमी बैठे हो और उनका नाम ना लूं, ये कैसे हो सकता है? तो सुनिए अब क्या किया सर, 45(4) और 45(4)(a) क्या है कि अगर एक उसको नाम रख दिया स्पेसिफाइड एंटिटी, स्पेसिफाइड एंटिटी में 2 आएंगे, फर्म एंड एओपी, और उनका नाम रख दिया स्पेसिफाइड पर्सन, 2 आएंगे, पार्टनर एंड मेंबर ऑफ एओपी। अब लिख दिया क्या है, इफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वो भी डाल दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायर। इफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन a specified entity has given any asset in kind to the specified person of an amount equal to his capital balance
इक्वल टू हिज कैपिटल बैलेंस, आपने उसको एसेट दे दी जितनी कैपिटल बैलेंस था। तो कहता है फॉर दिस पर्पस देयर विल बी ए कैप, फॉर द पर्पस रिवीलिंग दिस देयर विल बी एसेट विल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू एंड देयर विल बी ए कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी, क्योंकि मार्केट वैल्यू लेकर जो दी उसका जो डिफरेंस है उस एसेट का, उस पे कैपिटल गेन दे दो। आपने दिया उतना, कैपिटल उतना ही दिया है, लेकिन एसेट दे दी इन काइंड, कैपिटल जितना उतना। तो वो कह रहा है पहले मार्केट वैल्यू निकालो और फिर कैपिटल गेन दो और एसेट उसको दे दो। और साथ में नीचे लिख दिया प्रोवाइडेड दैट जब कैपिटल का बैलेंस होगा वो विदाउट रिवैल्यूएशन वाला होगा, कोई रिवैल्यूएशन एसेट नहीं होगी और कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट को आपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो अब तो कैपिटल बैलेंस वही होगा जिसका आपका एक्चुअल है। वो बोगस जो रिवैल्यूएशन से किया या सेल्फ जनरेटेड से किया उसको हटाओ। क्लियर हो गया 45(4)? अब 45(4)(a) डाला है अशोक। क्या करा? अरे कई बार आप क्या कहते हैं, उसको बैलेंस है, वो रिटायर हो रहा है, बैलेंस 40 लाख है, आप उसको 50 लाख देना चाहते हैं, 55 लाख देना चाहते हैं। वो कहता है रुक जाओ, इफ यू हैव गिवन एनी मनी और एसेट टू हिम मोर देन हिज कैपिटल, मोर देन हिज कैपिटल आपने दी है, तो इस केस में पार्टनरशिप वो स्पेसिफाइड एंटिटी को कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कैसे? क्या कंसीडरेशन होगी? मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस हिज कैपिटल, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स दो। कौन देगा? एंटिटी। सपोज आपने 40 के बदले उसको 60 दे दिया और उसके बदले आपने उसको कैश दिया 30 लाख और एक एसेट दे दी। कहते हैं एसेट की तो मार्केट वैल्यू निकालो और 30 लाख में जोड़ो, माइनस उसका जो ओरिजिनल कैपिटल था 40 लाख, बाकी पे कैपिटल गेन टैक्स स्पेसिफाइड एंटिटी देगी। इसे नाम रखा 45(4)(a)। सो सारी प्लानिंग खत्म, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, और साथ में क्लियर कर दिया रिटायरमेंट भी आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। ये क्लियर हो गया। हम क्या करते थे, किसी को निकाल देते थे, किसी को ले देते थे और कहते थे ये तो रिटायरमेंट है, ये कोई डिसोल्यूशन थोड़ी है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है 45(4) और 4(a) में तो पूछ लीजिए, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं है ना? नहीं है सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक 80(e)(a) सेक्शन है, EE80, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई अफोर्डेबल हाउस खरीदें, लोन ले लें और हाउस की कीमत 45 से ज्यादा नहीं है, तो और लोन अगर आपका सैंक्शन हो जाता है 31 मार्च 21 तक, तो हम एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट 1.5 लाख की यहां पर देंगे। जो 24B में वो अलग है, ये 1.5 लाख की और मिलेगी, प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए और आपके पास ऑलरेडी कोई घर नहीं होना चाहिए। तो हम 1.5 लाख रुपए यहां से दे देंगे, 2 लाख ऊपर भी है, ये 1.5 लाख है। ये 31 मार्च 21 तक लोन सैंक्शन होना था, लेकिन कोविड की वजह से ज्यादा तो लोन वोन भी नहीं हुए और ज्यादा लोगों ने खरीदा ही नहीं है, इसलिए इस 80(a) को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 22 कर दिया है। क्लियर है? इसलिए किया है। अब 80(b)(a), 80(b)(a) में क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग। और ये बिल्डर जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट सैंक्शन करा लें तो उनका 100% प्रॉफिट माफ है उस अफोर्डेबल हाउसिंग का। अरे कई हरियाणा में बहुत हो रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी जी जी। रूल है कि इतने का घर 45 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, इतने एरिया बनाना चाहिए, वो सब रूल है, और प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और सैंक्शन हो जाना चाहिए 31 मार्च 21 तक। ये कोविड की वजह से ये भी प्रॉब्लम हुई, इसलिए इसका 1 साल बढ़ा दिया, 31 मार्च 22 तक सैंक्शन होगा, तो भी हम ये बेनिफिट 80(b)(a) में जो है वो दे देंगे। क्लियर हो गया? अब एक नई कंसेप्ट निकाला। मोदी जी सोचते बहुत और अच्छी चीजें सोचते। ये माइग्रेंट लेबर है, बिहार से आए, हरियाणा में खेती में काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं। वहां से आते हैं, इतनी तनख्वाह है नहीं और घर किराए खरीद नहीं सकते, और किराया महंगा है, और किराया दे तो कैसे रहे। तो उन्होंने कहा कि एक रेंटल
हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाइए, रेंटल हाउसिंग। बिल्डर को कहा रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट कि वो होगा ही रेंट के लिए और अफोर्डेबल होगा। छोटे छोटे एक एक का बना लो, एक रूम का सेट बना लो इस सब, और उसको किराए पे दो। उससे जो प्रॉफिट आएगा वो भी हम आपको पूरा माफ कर देंगे। किसको? बिल्डर्स को। और इसके लिए सेक्शन डाला 80 IBA सब सेक्शन 1 कैपिटल ए। क्लियर हुआ? ये नई चीज डाली है जो कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब जरा सबको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। पहले तो किसी को जरूरत थी और किसी को नहीं जरूरत थी। राजेंद्र जी, आपको बहुत आदत है रिटर्न बिलेटेड डालने की। यार जुलाई में नहीं डालेंगे, इंतजार करेंगे कि स्क्रूटनी ना आ जाए तो डाल देंगे बिलेटेड रिटर्न। और अधिकतर रिटर्न 31 मार्च को डाली जाती थी। ठीक है, पेनल्टी लग गई थी 5,000 और 10,000, लेकिन कहते थे कोई बात नहीं। और पहले तो पेनल्टी भी नहीं थी, ओ फाइन, पेनल्टी नहीं फाइन। पहले तो हम क्या करते थे, 31 मार्च के दिन बड़ा रश होता था, 31 मार्च को डालेंगे, लास्ट डे को 1 ईयर मिलता था बिलेटेड रिटर्न डालने का। अगर कोई रिटर्न गलत डाली थी तो रिवाइज भी करने के लिए 1 ईयर मिलता था। जी नहीं, अब 3 महीने प्रीपोन कर दिया। मैक्सिमम डेट होगी 31 दिसंबर रिटर्न डालने की, चाहे वो बिलेटेड है चाहे रिवाइज है। उसके बाद आप रिटर्न डाल ही नहीं सकते। चलो काम तो फ्री हुआ, 31 दिसंबर को अच्छा मना लेंगे रात को, और जनवरी फरवरी में काम ही कोई नहीं होगा क्योंकि रिटर्न तो सब चली गई। जो इनकम टैक्स का काम करते हैं, ऑडिट का छोड़ो, जो इनका ऑडिट तो मार्च के बाद शुरू होगा ना, जो इनकम टैक्स का काम करते हैं 31 दिसंबर के बाद रिलैक्स पिकनिक बना के आएंगे। हैं जी, पिकनिक बनाने जाएंगे। हाँ जाइए, घूमने जाइए, घूमने जाइए। और बता रहा हूँ घूमने जाने का क्या कारण है। और भी राजेंद्र जी, जो प्लानिंग करा करते थे सुन लो, 3 महीने एडवांस हो गया। स्क्रूटनी का नोटिस आता था 143(2) में, जितने लगते ही हैं 143, उसको बुलाना है, 143(2) का नोटिस आता था। क्या आता? स्क्रूटनी का नोटिस 30 सितंबर तक, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द रिटर्न इज मेड। 30 सितंबर तक नोटिस आता था। और राजेंद्र जी कहते थे अपने क्लाइंट को, यार 30 सितंबर को आएगा, जुलाई को रिटर्न मत भरो, पता नहीं क्या होगा। स्क्रूटनी आ गई तो फिर दूसरी तरीके से भरेंगे, स्क्रूटनी नहीं आई तो रिटर्न भर देंगे। ठीक है ना? पर सर इस बार तो इलेक्शन है दिसंबर में, मार्च ही ठीक था। अरे वो ठीक है, सुनो अब क्या किया है। अब स्क्रूटनी का नोटिस भी 30 जून के बाद नहीं आएगा। 30 जून लास्ट डेट होगी। इसका मतलब है अब जुलाई में रिटर्न भर दो, कोई बात नहीं, पता लग गया स्क्रूटनी नहीं होनी। जुलाई में रिटर्न भर दो, अब स्क्रूटनी तो होनी नहीं क्योंकि 30 जून हो गया। तो 3 महीने कम हो गए। अरे लगता है 3 महीने कम हुए, डिपार्टमेंट को तो 6 महीने ही मिले हैं। आप कहेंगे 6 से 6 महीने मिले, 31 मार्च से 6 महीने थे, अब 31 दिसंबर से 6 महीने हो गए। तो वो तो अपना तो एडवांटेज ले गए, लेकिन हमें ये फायदा हो गया 30 जून के बाद कोई स्क्रूटनी का नोटिस नहीं आएगा। तो 30 जून आप कहोगे 30 जून में तो आएगा। अरे रुक तो जाओ, 153 में लिखा जो टाइम बार्ड केस होते थे, किसी जमाने में 24 महीने के बाद टाइम बार्ड होते थे, फिर 21 महीने हो गए, फिर 18 महीने हो गए, अभी तक 12 महीने थे, उसको भी 9 महीने कर दिया। सो 31 दिसंबर तक टाइम बार्ड केस भी खत्म हो जाए। तो काम ही क्या है सर, रिटर्न भी चली गई, केस भी पुराने टाइम बार्ड खत्म हो गए, तो जनवरी फरवरी मार्च आराम करो। ऑडिट भी मार्च के बाद होना है, रिलैक्स हो गए ना। कहते थे बड़ा टेंशन है सीए के ऊपर, बड़ी टेंशन है सर, क्या करें। अभी टेंशन ही खत्म कर दी, टैक्स ऑडिट भी हटा दिया 10 करोड़ से नीचे का, रिटर्न भी 31 दिसंबर के बाद खत्म, जीएसटी ऑडिट भी हटा दिया सर, जीएसटी ऑडिट गया, और ये भी टाइम बार्ड केसेस भी 31 दिसंबर के बाद खत्म। जनवरी फरवरी मार्च मजे लो, नया साल अच्छा मनाओ, 31 दिसंबर रात को आराम से मनाओ। तो ये आया है सर जो मैंने आपको बताया, ये सबके लिए जरूरी है, इसलिए मैं इसको मजे मजे में बताकर आपको समझा दिया है। अगला पॉइंट, वो जो इंटीमेशन आती है ना 143(1) में, वो भी इंटीमेशन 9 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद नहीं होगी। पहले साल भर होता था, अब 9 महीने कर दिया 143(1) का। अब चलिए
कई लोग आपके बीच में सर्च के बड़े एक्सपर्ट होंगे, वो सर्च करके लिए आपको पता है, जब एक बार सर्च हो जाए 132 में या 132 में रिक्विजिशन हो जाए, तो उस केस में असेसमेंट होती थी सेक्शन 153A, 3B और 3C में असेसमेंट होती थी, और 6 साल की रिटर्न भरनी पड़ती थी, 6 सालों की। हाँ, कई बार तो वो कहते थे अगर पिछले 4 सालों में, 6 से पहले 4 सालों में एक या एक से ज्यादा सालों में 50 लाख से ऊपर है तो वो वाली रिटर्न भी भरनी पड़ती था ना 153A-BC में। अब 153A-BC 31/12/2021 के बाद जो रिटर्न होगी उसमें ये सेक्शन लगेंगे ही नहीं। नो 153A, नो 153C if search is conducted on or after 31st March 21। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए वही सेक्शन आ जाएगा जो 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नॉर्मल केसेस में होता था, सर्च केसेस में भी 147 आ जाएगा। अब सारे सेक्शन बदल दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, 147 बदला, 148 बदला, 149 बदला, 151 बदला, 153 बदला, और एक नया सेक्शन भी डाल दिया 148A। बड़ी मुश्किल से तो समझ में आया था 147, 148, और वो भी अब दोबारा बदल। ये बड़ी मुश्किल है इनकम टैक्स में, जब समझ में आ जाता है तो लाई बदल देते हैं। कुछ आया ना, क्योंकि जितने भी रीअसेसमेंट के केसेस थे, इनकम एस्केपिंग के थे, वो अभी अभी तो समझ में आता था कि वो कहता था पर्सन है रीजन टू बिलीव, तो वो 148 में नोटिस देता था, कहता था रिटर्न भरो, और फिर कहता था, आप कहते थे नहीं रीजन बताओ, वो कहता था ना पहले रिटर्न भरो। रिटर्न भरने के बाद रीजन बताए जाते थे, फिर रीजन की आप ऑब्जेक्शन फाइल करते थे, और ऑब्जेक्शन के बाद वो कहता था नहीं मैं नहीं मानता, और उसके बाद 147 कर देता था। यही था, अपील करते रहो, लेकिन रीजन बाद में बताए जाते थे। जब तक आपको नहीं बताया जाता, बैठ के मजे लेते थे कि आपको पता लग गया कि कौन सी चीज एस्केप हुई है, कौन सी नहीं हुई, हम नहीं बताएंगे, आप बताओ कौन सी चीज एस्केप हुई, ये होता था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव हो गया, ये कहते हैं हमें आपकी इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है। आजकल आप देखो, आपको एक चिट्ठी आ जाती है सीपी से, आपने गाड़ी खरीदी है, फुल स्टॉप, आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराया है, फुल स्टॉप, आपने घड़ी बेच, आपने एक वो लिया है, प्रॉपर्टी ली है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बहुत इंफॉर्मेशन वो आपको बता देते हैं। पर्पस क्या है? भैया अपनी रिटर्न भर दो, नहीं तो फंस जाओगे। सोर्स है ना इसका, नहीं है तो देख लो क्या है, हमें पता है कि ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, आपने ये मोटी मोटी एसेट ये खरीदी है, हमें पता है, हमें पता है आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है, जा कहाँ रहे हो, हमें पता है, हमें पता है कि आप क्या क्या कर रहे हो, इतने शेयर वही खरीद रहे हो, पता है। अब इन्होंने 148A से, पहले क्या होता था, आप रिटर्न भरते थे, फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताते थे तो 143(2) होता था, फिर भी कोई रह जाता था तो 148 करके आपको 147 कर देते। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, 148 में आए कि हम खुद बता देंगे आपको रिटर्न भरने से पहले ये इनकम एस्केप हुई है, 147 शुड नॉट बी डन। आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और उसके बाद नोट शो कॉज देंगे, और शो कॉज का जवाब लेंगे, फिर ऑर्डर पास करेंगे कि भाई ड्रॉप करना है कि आपको नहीं करना, और फिर उसके बाद 148 का नोटिस देंगे, साथ में उसका 148A लगा देंगे और कहेंगे रिटर्न भर दो। के बाद क्लियर, तो आपको पहले ही बता दिया ना तो सब कुछ कि ये है कारण, इस कारण से हम 147 करने जा रहे हैं। और आपकी इंक्वायरी, लेकिन रुकिए, सर्च हुई है, रिक्विजिशन हुई है, सर्वे हुई है, तो फिर उसका शो कॉज क्या देना, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो ही गया, उसका तो हमने अप्रेजल रिपोर्ट बनाई दी है, उसके लिए ये शो कॉज 148 नहीं है। 148 नॉर्मल केसेस के लिए, सर्च केसेस के लिए नहीं है, उसके लिए तो आपको बता ही दिया, ये हमने बताया। अब जो बढ़िया काम किया कि अब असेसमेंट जो होनी है वो कब तक खुल सकता है केस, 3 years, maximum period of 3 years from the end of the assessment year in which the income has escaped assessment। अभी तक तो नॉर्मल केसेस 4 साल
या 6 साल तक खुल सकते थे, 4 या 6 तक। सच और सर्च के केस मिनिमम 6 के खुलते थे और उसके जवाये भी खुल सकते थे अगर किसी पिछले 4 सालों में 50 लाख से ऊपर है। अब सर्च का हो या नॉर्मल केस रीअसेसमेंट का हो, मैक्सिमम पीरियड 3 इयर्स। आपको 3 साल के बाद इनकम स्केपिंग असेसमेंट का नोटिस नहीं आ सकता। लेकिन रुकिए, सर्च में भी 3 साल है, लेकिन रुकिए, अगर 3 साल से पहले जो 7 साल है, टोटल 10 हुए ना, उसमें कोई पर्टिकुलर ईयर में 50 लाख से ऊपर इनकम फॉर स्केप हुई तो वो केस भी खुल सकते हैं। अब 10 हो गया 6 के बदले, लेकिन वो वाला जो 50 से ऊपर है, 50 से कम है तो नहीं, 50 से ऊपर है तो कर देंगे। और सर्च में भी कह दिया, पर सर्च में तो 4 सालों का टोटल 50 गिनते थे, अब 1 साल का 50 है तो वो खुल सकते। रिलीफ तो है 3 साल, पहले तो 6 साल, 4-6 थे और सर्च में तो 6 ही थे, अब 3 ही है। हाँ, पिछले सालों में खोलेंगे तो 50 लाख से कम नहीं है तो नहीं खोलेंगे। ये सारे सेक्शन मैंने आपको बताए, 147, 148, 148 कैपिटल ए, 149, 151, 153 क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़े। अब एक हमें बेवकूफ बनाया, पार्लियामेंट में तालियां बजवा दी डेस्क तक हो, क्या कि जो 75 साल की उम्र के लोग होंगे उनको रिटर्न नहीं भरनी होगी। पूरा चीजें बताई नहीं वहां पर, बताया कि सिर्फ पेंशन है और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, रिटर्न नहीं भरेगी। ये नहीं बताया कि वो एक ही बैंक में होना चाहिए, कोई दूसरा बैंक हुआ तो फिर ये भर ही नहीं सकते। क्या पेंशन है और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है तो वो बैंक टीडीएस काट लेगा, पूरा सारा जितना टैक्स बनता है आपको, जो वो देना है चैप्टर 6 से दे देगा आपको। नहीं, इन 75 साल से भैया ऐसा कर रहे हो। अगर डिविडेंड इनकम आएगी तो क्या होगा, अगर प्रोविडेंट फंड की उसकी म्यूचुअल फंड की इनकम आएगी तो क्या होगा, कोई रैंक आएगा तो क्या होगा, तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। अरे है क्या, एक ही बैंक अकाउंट दूसरा बैंक अकाउंट हो तो भी नहीं हो सकता। तो ये तो दिखावे की बातें हैं, ताली लगाने की बातें हैं। और 75 साल वालों को और कोई इनकम होगी ही नहीं। इतना गरीब आदमी है, या तो बैंक में रखता है ज्यादा या पेंशन ले रहा है, उससे ज्यादा उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन ये वोट बैंक के लिए होता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी एक काम किया है, 75 साल से उम्र के ज्यादा कोई होगा तो उसका मेडिकल फ्री होगा, करा है ना, आ गया होगा नोटिस आपको कि उसका मेडिकल फ्री। वैसे तो जो प्रोफेशनल है 75 साल का है तो कमाई तो करी होगी उसने, नीडी नहीं होगा, नीडी नहीं होगा तो कभी जाएगा। अब वही मैं भी 75 साल का जून में हो जाऊंगा, मई में हो जाऊंगा, भगवान ना करे कोई पैसा, वैसे तो भगवान ना करे, अगर जरूरत भी खर्चा करना पड़ेगा तो मैं क्या इंस्टीट्यूट से लूंगा? नहीं सर, लेना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मुझे क्यों लेना, अफोर्ड नहीं कर सकता तो लेना चाहिए, अदरवाइज क्यों। और अफोर्ड का ले से तो माँ बाप की सेवा करना बच्चों का फर्ज है, तो बच्चों की ड्यूटी है ना माँ बाप की सेवा करे। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, माँ बाप अपनी सबरे होश आवाज में उसको गिफ्ट दे देते हैं, फिर वो परवाह नहीं करते, उसकी परवाह इंस्टीट्यूट करेगा, अच्छा उसकी परवाह इंस्टीट्यूट करेगा। लेकिन हराम खोरो, मैं बच्चों को कह रहा हूं, याद रखना, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी वो भी माँ बाप बने हैं, देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। ये वक्त बदल गया, पता नहीं क्या हुआ है। माँ बाप की सेवा कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे, उन्होंने सारी उम्र तुम्हारा एहसान किया है, क्या बातें हैं, उनका इलाज नहीं कराते, अरे उनके नाम का मकान है उसको घर से निकाल देते, जबरदस्ती साइन करवा देते। अरे क्या हो गया इस जमाने को, क्या हो गया इस जमाने को, पैसा ही सब कुछ हो गया ना, और तो कोई कुछ नहीं रहा।
अरे इतनी माँ बाप के है, अब गरीब है तो क्या हुआ, अमीर है तो क्या हुआ, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन जी, अकल जी। तभी आएगी जब मैं लेक्चर दूंगा। मेरे को नहीं है, मेरे बच्चे, मेरा लड़का नहीं, मुझे चिंता नहीं है, मेरी बेटियां हैं, और बेटियां तो हमेशा पूछती हैं। A son is a son till he gets a wife. A daughter is daughter throughout her life. ये आपको बता दूं, बेटियां हमेशा पूछती हैं। अभी भी मेरी बेटी, बीवी अब मेरी नहीं रही, अभी भी बेटी 3 बार फोन करती है दिन में, नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया, क्या खाया, रात को भी पूछेगी खाना खा लिया ना। ये बेटियां हैं, बीवी से भी ज्यादा पूछ रही है। बीवी होती तो इतना पूछती, कभी लड़ाई भी हो जाएगी। बेटियों से तो लड़ाई भी नहीं हो सकती, बेटियों से तो लड़ाई भी नहीं हो सकती, ये मैं बता दूं। बेटियां अच्छी होती हैं, ऐसे लगा नहीं है, बेटे भी अच्छे होते हैं अगर माँ बाप को वो पूछेंगे। लेकिन उस आदमी ने मोती दान किया है जिसके बच्चे बच्चे पूछते। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सब यंग लोगों को, ये मत करना। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, हमारी लेडीज की भी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी विडंबना है। मेरी बेटी मुझे 3 बार फोन करती है, मैं उसको कहता हूं जो नीचे सास और बहू बैठे हैं उनका भी पूछ लिया करो, कम से कम एक बार तो पूछ लो कि भाई सबकी ये ठीक है कि नहीं है। मेरे को तो 3 बार फोन करते, अगर वो पूछोगे खुश होंगे। लेकिन क्या विडंबना है, सास और बहू की पद्धति नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या है ये, क्या खत्म है, मेरे अभी तक समझ नहीं आया। बहू भी कभी सास थी और सास बन के फिर बहू से लड़ती है, ये विडंबना क्या है। और मरता कौन है, हस्बैंड। बेटा बेचारा माँ की तरफ देखे कि बीवी की तरफ देखे, माँ की तरफ देखे कि बीवी की तरफ देखे। माँ की तरफ देखे तो कहता है मामा बॉय है, और बीवी की तरफ देखे तो कहता है बीवी का गुलाम है। अब मरे तो कौन, मरेगा तो आदमी, औरत थोड़ी मरती है। पर लेकिन औरत कहती है मैंने सेक्रीफाइस किया है, देखो मैं अपना घर छोड़कर इधर आ गई आपके लिए। ये है, ये तो कल्चर है हमारी, उसमें कौन सी बड़ी बात है अपने सेक्रीफाइस किया। लेकिन बीवी की इंपॉर्टेंस होती है, ये भी बता दूं। अब पता लगता है मुझे कि बीवी की क्या वैल्यू है जब कंपनी ना मिले तो। लेकिन एट द सेम टाइम बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा हमें, माँ बाप का पूछना तो पड़ेगा ही हमें। बड़ा लेक्चर दे दिया, सरमन्स दे दिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अच्छा लगा होगा बुजुर्गों को। यस नहीं सर, सर, हमें भी अच्छा लगा है सर, उनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जी। क्या कह रहे हैं, हमें भी अच्छा लगा है सर। अच्छा लगा है ना। हाँ जी सर। अपने दोस्तों को समझा दो जो गलत काम कर रहे हैं, तो माँ बाप को पूछें, माँ बाप की सेवा करें। कोई आसान नहीं कर रहे आप उसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 194Q सर, लास्ट ईयर एक सेक्शन आया था अशोक जी, 206C1H आया था ना, जिसमें कहा था अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, अगर कोई वो अमाउंट रिसीव कर रहा है बायर ऑफ द गुड्स से मोर देन 50 लाख, तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1%। लिखा था ना, 0.1% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख, ठीक था ना। और वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। हाँ जी। और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो अपने सॉफ्टवेयर बदल के बिल के ऊपर ही टीसीएस चार्ज कर दिया था, बिल के ऊपर ही 0.0 पर जोड़ा कि भाई हमारे तो सारे कस्टमर 50 लाख से ऊपर हैं, तो हमने तो लेना ही लेना है टीसीएस। बिल में ही डाल दिया, सॉफ्टवेयर बदल दिया। लेकिन देखिए फिर बदल गया, क्या एक 194Q आ गया। अगर आप बायर ऑफ गुड्स हैं और आपने 50 लाख से ऊपर गुड्स खरीदे या 50 लाख से ऊपर पेमेंट करी, किसको, सेलर ऑफ गुड्स को, तो बायर की ड्यूटी है कि वो टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ 0.1%, प्रोवाइडेड बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है। वहां लिखा था 2061H में सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और बायर का टर्नओवर नहीं लिखा था। लेकिन अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो टीसीएस नहीं होगा, टीडीएस होगा। तो बड़ी कंपनियों के बायर सारे ही 10 करोड़ से ऊपर है, तो टीसीएस तो खत्म हो गया। वो कहते हैं टीडीएस काटना पड़ेगा 0.1%। उनके सॉफ्टवेयर ही बेकार हो गए, क्योंकि प्रेफरेंस 194Q को देनी है, उसको नहीं देनी, किसको, 201
2061CH को। हाँ, ग्रोस वैल्यू दोनों चलेंगे। अगर सेलर 10 करोड़ से ऊपर है और बायर 10 करोड़ से नीचे है तो 2061H होगा। अगर बायर 10 करोड़ से ऊपर है तो सेलर को देखना ही है तो 194Q होगा। अगर दोनों 10 करोड़ से ऊपर है, बायर भी और सेलर भी, तो 194Q होगा, 206C1C नहीं लगेगा। और 2016C में रिसीड बेसिस पे था, यहां पर पेड और क्रेडिटेड विच एवर अर्लियर है, तो दोनों चलेंगे। लेकिन एक चलेगा जब दोनों का 10 करोड़ से ऊपर है। अगर बायर का 10 करोड़ से ऊपर है तो 194Q लगेगा। अगर बायर का 10 करोड़ से ऊपर है और सेलर का 10 करोड़ से ऊपर है तो 206C1H लगेगा। क्लियर हो गया सर? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ मैंने जी। बहुत तरीके से एग्जाम्पल देके समझा दिया है। अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आइए आगे चलते हैं। 206AA, आपको पता है ना, अगर आप पैन नंबर नहीं देते तो टीडीएस किस रेट पे काटना है? 20%। है जी, कितना? 20। मैडम Tax अगर rate to लॉन्ग 20 होगा whichever तो is higher. 20 काटोगे। 5. Whichever is Whichever higher. is higher. Whichever is higher. रेट प्रिस्क्राइब, रेट इन फोर्स और 20 whichever is higher. अगर 20 से नीचे है तो 20 से ऊपर तो उतना काटना है। अब एक बड़े बड़े महानुभाव हैं इस कंट्री में, उनका टीडीएस तो कटा है लेकिन वो रिटर्न ही नहीं भरते। 1% टीडीएस काट लिया होगा आपने, 2% काट लिया होगा 194C में, कहीं 5 काट लिया होगा, कहीं आपने कोई मशीनरी किराए पे दी तो 2% काट लिया होगा, काटा होगा ना, वो रिटर्न ही नहीं भरते। या टीसीएस काट लिया होगा, कलेक्ट कर लिया होगा, वो रिटर्न भरते ही नहीं। अब क्या कहा गया सुनो, एक नया सेक्शन डाला गया 206AB और दूसरा डाला गया 206CCA। क्या डाला जरा सुनना। अगर एक एसएससी है डिडक्टिव जिसका काटना है, उसने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी, नारंग साहब 2 साल की रिटर्न नहीं भरी, और उन 2 सालों में हर साल 50,000 से कम से कम 50,000 टीडीएस और टीसीएस कटा था, लेकिन उसे फिर भी रिटर्न नहीं भरी, तो इस केस में अब जो डिडक्टर है वो जो टीडीएस काटेगा वो डबल होगा। डबल मतलब अगर 5% है तो 10% काटेगा, 10% है तो 20% काटेगा, अगर 1% है तो डबल नहीं 5% काटेगा, whichever is higher। वो कर दिया। तो ये पवन जी मुझे पूछेंगे सर मुझे क्या पता उसने रिटर्न 2 साल की नहीं भरी, मेरे को नॉलेज कहाँ है? कहते मेरे को क्या, कहते चिंता ना करो, यूटिलिटी में आ जाएगा, एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें उस आदमी का पैन नंबर डालना, इमीडिएटली पता लग जाएगा कि उसने रिटर्न भरी या नहीं, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कुछ नहीं है, पैन लेना डालना, क्लियर हुआ। लेकिन अगर उसका पैन नंबर ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, टीडीएस काटा तो पैन नंबर ही नहीं है, फिर तो हाईएस्ट रेट काटना जो 206AA में है या इसमें whichever is higher। समझ में आ गया? तो ये नया लॉ आया है 206AB और 206। हाँ जी, 50,000 जो देखने वो एक अपना डिडक्टर देखेगा जो काट रहा है या ओवरऑल 26 इसमें जो आया है? डिडक्टर देखेगा, एक पर डिडक्टर में डालते ही देखेगा, पैन नंबर बता देगा कि ये बेईमान आदमी है, रिटर्न नहीं भरता, पैन नंबर बता देगा कि ये आदमी रिटर्न नहीं भरता, इसका टैक्स डबल काटो। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम है। ऐसे मत कह देना सर हमें क्या पता, अरे बैंक भी तो कर रहे हैं, जो पिछले 3 साल की रिटर्न नहीं भर रहा तो 20 लाख के ऊपर विड्रॉल पे टीडीएस है ना 194N में, अदरवाइज 1 करोड़ के ऊपर है जो कैश निकालता है, तो बैंक को कैसे पता भैया उसे रिटर्न भरी नहीं भरी? बैंक को यूटिलिटी दे दी गई है, देख ले इसका पैन नंबर डाल के कि इसने रिटर्न भरी है कि नहीं, वही यूटिलिटी आपको दे देंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। बहाने मत बनाना कि मुझे नहीं पता, आपको सब कुछ पता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अगला, अब डिविडेंड तो कभी भी आ जाता है, इंटरिम डिविडेंड भी आ जाता है,
कभी जनवरी में आ गया, फरवरी में आ गया, इवन मार्च अभी भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है। और कई बार डिविडेंड अब हमने एडवांस टैक्स देना होता है, मुझे क्या पता कितना डिविडेंड आएगा। ऐसे कैपिटल गेन में भी वो सिस्टम है, मुझे क्या पता कितना डिविडेंड आएगा। जून की इंस्टॉलमेंट निकल गई, डिविडेंड आया नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं तो जून अपना इनकम एस्टिमेट करके जून का टैक्स दे दिया 15% वाला। सितंबर की भी इंस्टॉलमेंट मिल गई, निकल गई, मैंने दे दिया 30%। अब डिविडेंड आ गया, मुझे क्या पता, और मेरा डिविडेंड ज्यादा आ गया, मैंने तो एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया। कहता कोई बात नहीं, हम इसको प्रोवाइजो में डाल रहे हैं 234C के, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, अगर जो बैलेंस इंस्टॉलमेंट पड़ी है उसमें ये टैक्स दे, एडवांस टैक्स जमा करा। हम नहीं करें। सर मुझे तो मिला ही 20 मार्च को है डिविडेंड, इंस्टॉलमेंट तो लास्ट 15 मार्च की थी, सारी निकल गई। कहते कोई बात नहीं, 31 मार्च तक दे दो, हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये रिलैक्सेशन डिविडेंड के बारे में डाल दी अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 234C। आगे वो जो सेटलमेंट किया करते थे, सेटलमेंट कमीशन खत्म नहीं, सेटलमेंट कमीशन ही खत्म कर दिया कि भैया तुम बड़ी गड़बड़ करा करते थे, बोल सर, वो भी कहता था बोलो सर क्या करना है, खत्म, दोनों तरफ से गए। अब एक नया चीज डलवाई है, ये हमने ही डलवाई है, लेकिन अभी तो शुरू हुई है, आदत बढ़ेगी आगे। उसका नाम रखा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। अभी तो छोटे स्केल में, आपने 50 लाख के ऊपर रिटर्न नहीं भरी, 10 लाख का वेरिएशन है, तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास चले जाओ, ड्राफ्ट नेगोशिएट कर लो। आप कहेंगे सर फिर तो बात बन गई, बात नहीं बनेगी, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगा और रिकॉर्डिंग भी होगी, यहां भी बात नहीं बनेगी, और करके आप रिलीफ ले सकते हैं वहां पर। और वो सेक्शन डाल दिया इन्होंने, उसमें 245MA उस पे ही डाल दिए। लीजिए अब लास्ट पॉइंट है, पीछे 271AAD आया था, तो ये अगर कोई फेक एंट्री, फेक इनवॉइस, फेक खर्चा डाला होगा तो उसमें क्या कहा था उन्होंने, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी 200%, लेकिन एक और पेनल्टी लगेगी 271AAD की, कितनी, 100%। आया था ना 100%। और साथ में ये भी लिखा था जो ये आदमी एंट्री दिलवाएगा, जिसने ये करवाई है, उसके ऊपर भी 100% पेनल्टी लगेगी। अब एक और मुसीबत डाल दी, अगर ये 2 करोड़ से ऊपर है तो उस आदमी की प्रॉपर्टी भी क्या कर दी जाएगी, अटैच कर दी। ये 281B में डाल दिया गया है। लीजिए मैंने सारे सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं, जो वोट्स जो इंपॉर्टेंट थे। अब भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, IT-80 फेसलेस हो गया, IT-80 फेसलेस, असेसमेंट फेसलेस, अपील फेसलेस, पेनल्टी फेसलेस, आगे रेक्टिफिकेशन भी फेसलेस आ जाएगा, सब कुछ फेसलेस होने जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शक्ल ही नहीं देखनी, उनको आपकी शक्ल पसंद नहीं है, हमें उनकी शक्ल पसंद नहीं है, सब फेसलेस। सिर्फ अगर कोई हियरिंग लेनी है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस और रिकॉर्डिंग होगी, सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये नया डाला 255 जो आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। बोलिए कोई क्वेरी? फेसलेस वाली स्पीड कुछ ज्यादा नहीं है सर गवर्नमेंट के अभी तो? गवर्नमेंट नहीं आपको चुप रहा है कि पहले तो यार हो जाता था। अब भाई साहब उसको काम आएगा जिसकी नॉलेज है, जो नॉलेज तो सबकी ऐसी है, लेकिन पढ़ना छोड़ दिया था। कोई जब काम दे लेके ही करना है, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? वो भी कौन सा पढ़ा लिखा होता था, वो कहता क्या लाए हो और क्या जा रहे हो तो क्या दे के जाओगे। अब नहीं होगा, तो अब पढ़ना पड़ेगा। आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह की आप शो का इसका जवाब देते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया लाइफ में। और रिटर्न क्या है, किस तरह भरते हैं, ये अब पढ़ना पड़ेगा। जो हमने पढ़ना छोड़ दिया था वो अब वापस आएगा, और जो अच्छा दिमाग से काम करेगा वो ऊपर जाएगा। अब तो यंग है आप लोग, आपके पास तो टाइम है। हमें तो इतना कंप्यूटर भी नहीं आता था, आप तो सब कुछ करते हैं। तो पढ़ाई को जारी रखिए और आपका फ्यूचर ब्राइट है, ये मैं आपको बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं, फ्यूचर ब्राइट है।
गलत काम नहीं करना है। हम सीए बने थे हार्ड वर्क करके, गलत काम करने के लिए नहीं बने। ये जो बोगस बिलिंग का काम हो रहा है, ये एंट्रियों का काम हो रहा है, ये कैपिटल गेन का काम हो रहा है, ये गंदा काम है। कम खा लेना लेकिन अच्छा काम करना, टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने आपको सबको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर नोटिस के जैसे ना कई बार इसमें मेल नहीं आती नोटिस की, खाली इसी में पार्टी के उसमें लॉगिन आईडी पे आ जाता है और वो देखते नहीं चिंता है। ना कीजिए, बोल दिया है 3 जगह पे आएगा आहिस्ता आहिस्ता। एक लेकिन अब आज सुनते लीजिए, एक आपके मेल, एक आपके लॉगिन जहां होता है वहां, और एक मैसेज भी आएगा। अब इंतजार कीजिए ना, छोड़ेंगे नहीं। अब ये नहीं कह सकते हमें तो मिला ही नहीं। सपोज अगर खाली लॉगिन पे मेल नहीं रिसीव हुई है, वो रिडंडेंट थी जो भी, तो फिर क्या आप लिए है एसएससी के पास? डेट निकल गई। पहला पॉइंट ये है, अभी तक तो आइदर और था। आपने ईमेल दी है तो ईमेल में भी जरूर जाता है। ये गलत है जो कहता है नहीं जाता। कई बार एसएससी देखते नहीं ना, वही ये वाह वाह वाह, व्हाट्सएप तो सारा दिन देखते रहते हैं। एसएससी की बात कर रहे हैं ना, मेल नहीं देखते तो क्या हम करें? ईमेल नहीं देखेंगे, और वो वाली तो जरूर नहीं देखेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई है। वो क्यों देखें हम? वो तो वो बताएं, वो नहीं देखेंगे। व्हाट्सएप तो देखेंगे। अभी मैंने भी उठाकर देखा कौन सा व्हाट्सएप आया है। कौन व्हाट्सएप तो मेरे पास 700 आते हैं, लेकिन जो मैसेज आते हैं वो तो मैं पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप तो मैं देखता भी नहीं। 700 व्हाट्सएप देखते ही मैं पागल हो जाऊंगा। फेसबुक भी लोग देखते रहते हैं, तो भैया इनकम टैक्स का भी देख लो। और अब तो मैसेज भी आ जाएगा, इंतजार कीजिए, छोड़ेंगे नहीं। आप ये नहीं कह सकते टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा। ये जो टेक्निकली जीत जाते थे, नोटिस वर नेवर सर्व, और ये हो गया और सर्व्ड आफ्टर ड्यू डेट, ये सब खत्म हो जाने, बहानेबाजी, ये सब बहाने खत्म। अच्छा काम करो और अच्छे ही रहो। और इनकम टैक्स वालों को भी ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई। इनकम टैक्स वालों ने नोटिस दिए, वो पुराने नोटिस दिए जा रहे हैं, पूरी लंबे लंबे 2-2, 3-3 पेज के स्क्रूटनी के। उनको शो कॉज दे दिया डिपार्टमेंट ने, आपने ये नोटिस क्यों दिया? जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है तो आपने दोबारा क्यों मांगी? वो कॉपी पेस्ट चल रहा था सर। वही पुराने चले आ रहे, कॉपी पेस्ट चल रहा था दे दिया गया है। अरे मैं जिस दिन चेयरमैन साहब के पास बैठा था, उन्होंने मुझे कहा एक एक को हमने नोटिस दे दिया है। अब आपके पहले कंप्लेंट करी कि ये देखो क्या है, ये बेवकूफी बन कर रहे। कहते नोटिस हमने सबको दे दिया है, और भी कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, हम ठीक करेंगे। ये वो तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं जो भी आपको डिफिकल्टी हमें बताओ, हम उसका टेकअप करेंगे। आप मोदी जी की साइट पे लिख दो, इमीडिएटली वो फॉरवर्ड हो जाती है चिट्ठी सीबीडीटी को फॉर एक्शन एंड रिपोर्टिंग बैक। रिपोर्टिंग बैक सर, वो उनको जवाब देना पड़ता है मोदी जी की साइट पर कि क्या है ये। आप कंप्लेंट करके दे दो मोदी जी की साइट पे, देखो कितनी जल्दी फॉरवर्ड होती है। ये ग्रीवेंसेस सॉल्व हो रही है। सर एक जैसे ईमेल की बात चल रही थी, उसके अंदर क्या रहता है कि जैसे प्रोफेशनल है वो हम सेकेंडरी मेल के अंदर देते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेल के ऊपर नोटिस नहीं आता। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि राजेंद्र जी एक मिनट रुक जाओ। एक तो ईमेल सेकेंडरी मेल वाली बातें जो कर रहे हैं, पहले तो ईमेल एसएससी की देनी चाहिए। नहीं, आपने ठेका क्यों ले रखा है? सर यही रोक रहा हूँ क्योंकि आपने ठेका क्यों ले रखा है? नहीं, मैं बात ठेके की नहीं कह रहा सर। एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकल पोजीशन को देखते हैं तो जितने भी एसएससी हैं उन लोगों के पास इतना सिस्टम ही नहीं है। उनकी ईमेल नहीं है। ईमेल अगर हम बनाए नहीं करते सर, असेस नहीं होती, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं। हरियाणा है वही नहीं करते, काफी लोग जैसे विलेजेस में और में नहीं करते। तो आपको बता रहा हूं ना कि आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके फोन पर। आप चिंता क्यों कर रहे हो? फोन नंबर डाल देना वहां पर। नहीं, मैसेज फोन पे भी आएगा, आप जैसे ईमेल पे भी आएगा। देते हैं। अब हमने उनको एक और सजेस्ट किया है, 2 ईमेल के एड्रेस दे दो। हाँ, वही जो एक प्रोफेशनल दे रहा है सजेशन दीजिए, मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। 2 ईमेल में दोनों में आ जाएगा। हाँ, यही चीज, लेकिन वो सेकेंडरी आएगा। आप चिंता नहीं करिए, सब कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। आपकी बात सुनी जा रही है, लेकिन इंस्टीट्यूट की बात नहीं सुनी जा रही, क्योंकि इंस्टीट्यूट टेकअप ही नहीं करता मैटर। मैं क्या करूं? और डेट ऑफ एक्सटेंशन मांगता रहता है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलत बात है, होना नहीं चाहिए। क्यों मांगते हो एक्सटेंशन? ठेकेदारी मत करो, इसलिए उनके लिए कहे जा रहे हैं।
तो ये याद रखिए। अब और बताते जाइए, होगा। अब मोदी जी की साइड पे लिख दो ना यार, सब कुछ होगा। मुझे मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। वो वहां से सीधा सीबीडीटी को लिखेंगे और कहेंगे इसका रिस्पॉन्ड वापस करो, हमें क्या एक्शन लिया आपने। आप देखिए तो सही कितने एक्शन हो रहे हैं, और एक्शन के होंगे और इम्प्रूवमेंट होगी। टाइम बदल गया, डिजिटलाइजेशन ने, ये कंप्यूटर एज में खर्चा तो कोई पड़ता ही नहीं है, फटाफट जवाब दिए जाते हैं। कोई रिस्पॉन्ड थोड़ी करना है फिजिकली, अब तो कोई फिजिकली रिपोर्ट है ही नहीं। चिट्ठी तो देखते रहते हो, चिट्ठी कब आएगी। अब चिट्ठी कब आएगी, नहीं, चिट्ठियां नहीं आएंगी, ईमेल आएगी। चिट्ठी आई है और चिट्ठी आनी नहीं है आपके घर में। पोस्टमैन को देख के ही कितने साल हो गए। हाँ, चिट्ठी नहीं आएगी। बजट भी पूरा जाओ हो गया सर कि विदेश से चिट्ठी आई है, अब विदेश से चिट्ठी भी नहीं आएगी। वो पंकज उदास को कहो अब तू उदास हो जा, अब कोई चिट्ठी नहीं आएगी। सीधा सीधा काम करो। चलिए बोलिए सर, और बोलिए। एक क्वेश्चन था सर, जो पीएफ का इन्होंने किया 2.5 लाख से ऊपर, तो पुराने पेट्रोल सर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी ना जी? पुराने की नहीं होगी, नए की होगी। ठीक है सर, तो पीएफ ईएसआई भी जो लेट डिपॉजिट है, पुराने केसेस में डिपॉजिट ही करा दें। हमने तो अपील फाइल कर रखी थी हम लोगों ने, कोई पर्पस नहीं ना। विवाद से विश्वास में चले जाते तो अच्छा था। अब तो वो डेट है, एक्सटेंड हो बढ़ा दिए सर, बढ़ा दिए 28 फरवरी तक बढ़ा दिया। बढ़ा दी है, कर दो। इसलिए शायद बढ़ाई है कि भैया अच्छा। बचा देते हैं आपको। कर दो। ठीक है। वैसे बहुत हैरेसमेंट है, एक दिन का भी लेट है तो पूरा डिसला हो जाएगा काफी। वो भी है सर, और एक दिन का लेट है तो आप रास्ते आखिर के दिन तक क्यों बैठे रहते हो? पैसा सैलरी दे दी है लेकिन वो नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। जब सैलरी दे दी तो ये भी जमा करा दो। गवर्नमेंट ड्यू है सर। हम जानकर करते हैं और फिर कहते हैं बहुत गलत बात है। हाँ, गलती कभी इंसान से हो जाती है, भूल जाता है, लेकिन सिस्टम अगर ऑफिस में बने हुए हैं तो भूलने का मतलब नहीं है, तो है नहीं। ये तो नहीं है, खाना खाने भूलते नहीं है और घूमना भूलते नहीं है, तो ये भी जमा कराइए। अब हम क्या बिल्कुल वो नहीं मानेंगे सर, वो नहीं मानेंगे। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अपने आप को सुधारिए, वो नहीं सुधरेंगे। इसमें सर ये जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन का जिक्र है मैडम के बजट में, जो स्पीच में मैंने बता तो दिया, बैड बैंक बनेगा। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन में अभी डिसइन्वेस्टमेंट में कौन से? अरे प्राइवेट नहीं है, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगा, वो भी पब्लिक सेक्टर में रहेगा। अभी प्राइवेट के लिए नहीं किया उन्होंने, अभी प्राइवेट के लिए कुछ नहीं किया, ये पब्लिक सेक्टर के किया है। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे 2 बैंक्स का वहां पे आ रहा था जिक्र कि 2 बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट के पर्पज से गवर्नमेंट शेयर्स बेचने जा रही है। यही तो है बैड लोन, बैड लोन्स को सेल करेंगे। अच्छा, चलिए कोई क्वेरी तो शायद नहीं, आई थिंक। चलो साहब खत्म कर दो, मेरा अगला भी है। ठीक है सर। इस सर को रेस्ट मिल जाएगा थोड़ी देर। आपसे कोई टाइम अशोक जी शायद पूछ रहे हैं कुछ। चलिए सर। अशोक जी पूछ रहे हैं। जैसे रीओपनिंग के 3 इयर्स रहेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक मेंटेन करने हैं, उसमें भी कोई चेंज है क्या? सर बुक्स ऑफ अकाउंट कितने पीरियड तक मेंटेन करनी है? बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना है, मेंटेन कितने साल करने हैं? 3 साल तक करने। सर अभी तो वही पुराना ही चल रहा है, वो भी 44AA के लिए लिखा हुआ है 6 साल, ऐसे ही हम करे जा रहे हैं। वो 44A के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंटेनेंस है, बाकी का तो लिखा ही कहीं नहीं है। लेकिन क्योंकि 6 साल तक के केस खुल सकते थे तो 6 साल तो हमने करा ही था, लेकिन अभी इसकी अमेंडमेंट नहीं आई है। लेकिन बैलेंस शीट लेजर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए वो तो रखे ही जाते हैं, वो कहते हैं। और अब तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ से हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक तो आपके रखे ही जाएंगे, हार्ड कॉपी लेके रख दीजिए। वाउचर्स, परचेज फाइल्स, बिल, वाउचर्स वो क्लियर कर रहे हैं, आ जाएगा वो रूल्स में चेंज करेंगे सर, वो रूल्स में होते हैं, वो रूल चेंज करेंगे और रूल में बता देंगे कितने साल करना है। Thank you sir for such a wonderful session and guiding us. And now I request CA Bharjan ji, Vice Chairman, for the formal vote of thanks. Good afternoon, everyone. I, CA Bharat Jain, Vice Chairman of Hisar Branch, on behalf of Hisar Branch of NIRC, I would like to thank Dr. Girish Ahuja, our tax guru, for updating on the union budget, sir. Sir, thank you very much.
I would also like to thank Thank you all the very much attendees, for all the attendees of the program. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू जी, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ. थैंक यू, टेक हाँ, thank you, sir. थैंक यू सर. नमस्कार जी. Thank you, ji. Thank you, sir.